دیگر کام یہ لوگ بتائیں گے. میں اورنگ آباد کی سڑکوں سے، یہاں کی عمارتوں سے، یہاں کے روڈ سے، یہاں کے لوگوں سے، یہاں کی شخصیات سے، یہاں کے مدارس سے، یہاں کے مساجد سے اور یہاں کے لوگوں سے بہت حد تک میرا تعارف ہے. میں سب کو جانتا ہوں، سب کی کیپیسٹی کو پہچانتا ہوں، کام کرنے کی صلاحیتوں کو، ان کی محبتوں کو میں سلام کرتا رہا ہوں اور کروں گا. میری امید یہ ہے کہ اس بار سلیم محی صاحب ہمارے فنکار جو شعرا اور دعا ہے، جو ڈرامہ لکھتے ہیں، جو کہانیاں لکھتے ہیں، جو افسانے لکھتے ہیں اور روزانہ ایک پروگرام کرتے ہیں، وہ پروفٹ فار آل کی مہم کے لیے ایک کوئی ایسا پروگرام کریں جس میں غیر مسلم کو دعوت دیں اور ان کو بتائیں کہ ہمارا یہ مشن کیا ہے. اورنگ آباد کا ماحول اس لیے بھی سازگار ہے کہ ہم تو متحد ہیں، لیکن ہمارے آس پاس جو ہمارے تال میل کے لوگ ہیں ان میں بہت سے لوگ جو ہے غیر مسلم لوگ مناسب نہیں لگتا مجھے ہمیشہ. اس سے میں کہتا ہوں کہ ہمارے اطراف ایسے برادر وطن ہیں جو ہماری محفلوں میں، ہماری پارٹیوں میں، ہمارے پروگراموں میں شریک ہیں. ان کو آپ اس موقع میں بلائیے اور ایک بہانہ تلاش کیجیے ان کو دعوت دینے کا. پڑوس میں کوئی بھی اگر برادر وطن رہتا ہے تو اس کو بھول بھی جائے، اس کو اس مٹھائی کا ڈبہ دیں، کہیں کہ یہ ہماری پراپرٹی محبت کا برتھ ڈے ہے. برتھ ڈے منانے کا تصور نہیں ہے، لیکن ہم اپنی اسکولوں میں اپنے بچوں کے لیے اس کی جب سالگرہ ہوتی ہے تو چاکلیٹ بھجواتے ہیں، خوشی کا ایک اظہار ہے. تو اگر آپ عید میلاد النبی کے موقع پر ایک چاکلیٹ بھجوائیں گے کلاس میں کسی ایسی اسکول میں جو مشنری کی اسکول ہے اور وہاں یہ کہیں گے کہ پراپٹ محمد کا برتھ ڈے ہے اور اس خوشی میں ہم آپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں، یقیناً بہت ساری باتیں پھر بہت. تو ایک پیغام محبت کا ہے جس کو لے کر ہم نکلے ہیں. آج ہماری 5 بجے میٹنگ جگہوں میں، ہم اس کو 2 بجے سفر کر کے یہاں سے نکلیں گے. وہاں سے آکولہ ساجد پٹھان صاحب کر رہے ہیں، وہاں بہت بڑے پیمانے پر میٹنگ. ہم نے سب کو جوڑنے کی کوشش کی. اورنگ آباد تو پہلے ہی ہم سے جڑا ہوا ہے، ہم کو تو صرف یہاں کے آپ کو بات کرنے پلیٹ فارم دے دیا ڈاکٹر پٹھان صاحب اور پلیٹ فارم دے دیا خالد سیف الدین لے کے بیٹھ کے کی عدالت کے باوجود بھی آپ سب کو فون کیا، ہمیں پلیٹ فارم کیا فیڈبیک نے کہ اپنے ساتھیوں کو بلایا. میں آپ کا شکار ہوں اور اس اسکیم کے بارے میں، اس مہم کے بارے میں، اس تحریک کے بارے میں ہم ڈائبہ بھی بولیں گے تھوڑا سا. شہید خان صاحب بہت تفصیلی سے کہیں گے کہ شہید خان صاحب کو سننے کے لیے ہم لوگوں کو ابھی بھی لائن لگانی پڑتی ہے کہ شہید بھائی کہیں آپ کو بہت اچھا بولتے ہیں اور بڑا رفع سلا بولتے ہیں اور ایک انداز ہے ان کا. اور یہ جب بولنے کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ ویسے آنکھیں صاف کر کے تیار ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کب رونا پڑے. میں شہید خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آپ سے پتا کریں. میرا رول یہاں تک ہوتا ہے، میرا کام تو بس چھوڑنے کا کام ہے. اللہ تعالیٰ اسلام. السلام علیکم. تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت ہی کے لیے ہیں جو اس کائنات کا خالق، مالک و حاکم ہے. کروڑوں درود السلام آقا اور مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر جو ہم سب کے لیے سب کچھ ہے. اور شرکا پروفیسر قاسم امام صاحب نے اس مہم کے تعلق سے تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی، جس کے ذریعے اس بات کا اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ یہ مہم کے مقاصد کیا ہیں اور اس مہم نے کس چیز کو گول بنا رکھا ہے. آج سے 4 سال پہلے شہر بمبئی میں اس مہم کا آغاز ہوا. اس مہم کو شروع کرنے میں ایک چیز وجہ بنی. وجہ یہ تھی کہ ہم نے غیر مسلم طلباء سے، انجینئر سے، ڈاکٹر سے، پروفیسر سے، پولیس والوں سے، گورنمنٹ آفیسر سے ایک سروے میں پوچھا کہ کیا آپ محمد صاحب، ان کے نزدیک میرے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ محمد صاحب کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ مفتی صاحب جی. اکثریت نے کہا کہ آپ کے کچھ وہ بڑے ہیں. کسی نے کہا کہ ہاں وہ اسلام کا کچھ لائے تھے، اور کچھ پڑھے لکھوں نے کہا کہ ہاں آپ کو کچھ روزہ، نماز، حج، زکات کی کچھ تعلیمات دے رہے ہیں. یہ وہ جملے ہیں، یہ وہ سروے رپورٹ ہے جس نے ہم سب کو بھیجے کہ ہندوستان کے طول و عرض میں غریب، کم عقل، کم پڑھے لکھے چھوڑ دیں، پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان بھی آقا اور مولا کی زندگی مبارکہ کے بارے میں
लाइट बराबर भी इंफॉर्मेशन। तब जाकर ये बेचैनी चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ तो करना। उम्मत आका और मौला की अकीदत में मुख्तलिफुल अक़साम के प्रोग्राम करती है। एक बच्चा जो ईद मिलादुन नबी पे झंडे लगाता है, मैं उसकी अकीदत को भी सलाम करता हूँ। उसका जज्बा मोहब्बत का है। बात तरीके की गुफ्तगू और इस्लाह की हो सकती है, लेकिन उसकी इस स्पिरिट को सलाम करना पड़ेगा कि अकीदत मोहम्मद मुस्तफ़ा में ही डंडा लगता है। जो जुलूस निकालता है, जिसकी बेतरतीबी पे गुफ्तगू हो सकती है, उसकी इस्लाह पे गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन उसमें आए हुए हर शख्स की उस स्पिरिट को सलाम करना पड़ेगा जो अकीदत मुस्तफ़ा में, चाहे कोई लंगर लगा रहा हो या कोई न्यास खिला रहा है भूखों को, इन सब के अंदर जो बुनियादी चीज वजद है वो मोहम्मद अरबी से मोहब्बत है। उन सबको सलाम, जो जो जिस तरीके से आका की अजमतों को बुलंद करता है, उन सबको सलाम। लेकिन कोई तो शोबा ऐसा है जो छूट गया। कुछ संजीदा लोग, कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ जिम्मेदार लोग इस शोबे की तरफ आए और इस शोबे पे काम करें कि जहां उम्मत की इस जिम्मेदारी को हम अदा करें कि हम आका और मौला की सीरत को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को गैर मुस्लिमों तक पहुंचाएं, उनके सामने आका और मौला की जिंदगी के वो अफवाह बताएं, मजहबी नहीं, वो अफवाह बताएं जो इंसानी कनेक्ट के हैं। यतीमों के हुकूक आका ने क्या कहे, पड़ोसी के हुकूक आका ने क्या कहे, नबातात लगाने के लिए क्या कहा, पानी बचाने के लिए एनवायरमेंटलिस्ट के हैसियत से आपने क्या कहा, जानवरों के हुकूक पे क्या कहा। जब हमने ये सारी बातें गैर मुस्लिमों के सामने पेश करना शुरू की तो मैं भी हैरत थे वो सब कि आपके मोहम्मद साहब ये सब भी बताते हैं। ये खाई जो है, इस खाई को दूर करने के लिए हमने एक रास्ता, एक नारा लगा रखा है, वो भाई रास्ता ही रास्ता है। कितना भी मुल्क का माहौल खराब, कितना भी इस मुल्क का माहौल, इसमें मोहम्मद में वो बरकत है कि हमने जहां जहां ये कहकर लोगों को बुलाया कि मोहम्मद साहब का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में आपको बुलाना चाहते हैं, बैठेंगे, खाएंगे, कुछ बात करेंगे। किसी प्रोग्राम में एक बरादरान वतन ने ये नहीं कहा क्यों नहीं आएगा। इसमें मोहम्मद की बरकत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अजमत है वो अल्लाह ताला शायद नाम लेते ही सामने वाले के दिल में डाल देता है। वाराफाना लका जिक्र तो खुद अल्लाह करता है, और अगर आप उसका हिस्सा बन जाए तो अल्लाह उसके दिल में, जहां वाराफाना लका जिक्र करने गए, उसके दिल में वो रूह, अजमत और मोहब्बत रसूलुल्लाह की पैदा कर देता है। गायबाना हम जिस गैर मुस्लिमों के पास गए, कहीं हमको ये बात किसी ने नहीं कही कि हम नहीं आना चाहते, हम मोहम्मद साहब के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते। तो हमने ये बात बोली, रास्ता ही रास्ता है। इस मुल्क में दूसरा कोई तरीका हमारे पास नहीं है। इसकी दूसरी कैच लाइन हमने दी, इफ यू नो हिम यू विल लव हिम। आप आका को जान जाओगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुद ब खुद मोहब्बत कर बैठोगे। इफ यू नो हिम, वो इनके खौफ में कर रहे हैं कि रॉब भाई बाद में डांटेंगे कि भाई क्यों नहीं चला। हेलो हेलो जी, तो मैंने जैसे कहा, कंटिन्यू कर लूं जुमलों से कि रास्ता ही रास्ता है, एंड इफ यू नो हिम यू विल लव हिम। इस पूरे मामले में जब हम जहां जहां गए और जो करीब से मालूम करने की कोशिश की कि सीरत मोहम्मद अरबी के बारे में क्या जानते हैं, माफी के साथ बोलता हूं, बहुत माफी के साथ, वो समझते हैं कि जैसे मोहम्मद बिन सलमान को बादशाह बैठा तख्त पे सोने के महलात में रहता है, इस्लाम का ये नुमाइंदा नजर आता है, मक्का मदीना इसके कब्जे में है, मतलब सॉरी मैं जुमला गलत कर दिया, मतलब उसके वो है, मुतवल्ली है। ये ऐसे ही कुछ रहे होंगे मोहम्मद साहब, यकीन जानिए, यकीन जानिए, या अकबर बादशाह और ये सारे बादशाहों को देख के समझते हैं इस्लाम के नुमाइंदे थे, और ऐसे ही कुछ मोहम्मद साहब रहे होंगे। गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले मेरे साथी इम्तियाज खलील वहां गए थे, वो बता रहे थे कि बेंगलोर में एक साहब ने पूरा 20 करोड़ रुपए खर्च करके स्टेट ऑफ द आर्ट एग्जीबिशन लगाया, और स्टेट ऑफ द आर्ट एग्जीबिशन में
آقا کی پیدائش سے لے کر دنیا کے رخصت ہونے تک ساری چیزوں کا ماڈل بنایا. عرب کے صحرا بنائے, بدر کا میدان بنایا, احد کی پہاڑی بنائی, مکہ پہلے کیسا تھا وہ بنایا, فتح مکہ کے بعد آقا جب آیا تو پھر مکہ کیسا ہو گیا تھا وہ بنایا, مدینہ بتایا. یعنی ایک ڈپکشن کہتے ہیں جس کو, پورا ڈپک کیا انہوں نے کہ رسول اللہ کی زندگی ایسی تھی. اور بڑی تعداد میں, کیونکہ اتنا خوبصورت انہوں نے بنایا تھا, اس کی اسی پبلسٹی ہوئی کہ بڑی تعداد میں غیر مسلم سے دیکھنے ہیں, دیگر برادران نے اس کو دیکھنے ہیں. ایک ایک ماڈل کے پاس ایک ایک شخص کھڑا تھا جو یہ بتاتا تھا کہ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. یہ ایک ایک ماڈل جو ہے نا, یہ کیا ہے. ایک جگہ جو ہے ایک شخص آتا ہے اور یہ پوچھتا ہے یہ کیا ہے, تو ڈپکشن بتاتا ہے یہ جو جھوپڑے جیسا گھر ہے یہ محمد عربی کا گھر ہے, یہ خاص پوز, یہ حجرہ عائشہ. پھر وہ پوچھتا ہے یہ تو ٹھیک ہے لیکن جب بادشاہ بن گئے تو کہاں رہتے ہیں. سوچیے کون بتایا کہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ اپنی آخری زندگی سارے ایام اسی چوپڑے میں نکالے. تب درد بڑھتا ہے کہ ہمارا غیر مسلم کیا سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کوئی بادشاہ, کوئی دنیا کا اتنا بڑا بادشاہ حجرہ عائشہ کی جھوپڑی میں نہیں اپنی زندگی کی آخری دن گزار کے چلا. یہ درد ہم لوگوں کو بے چینی کے ساتھ روڈ پہ لایا ہے اور یہی امت کو جگایا ہے کہ آپ غیر مسلم کے سامنے اپنے محبت کو صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے بتا دیں. آپ بتا نہیں پائے آج تک اس ملک میں ان کے دماغ میں کوئی بادشاہ, کوئی سلطنت کا راجا, کچھ پتا نہیں نہ جانے کے کیا ہے. ہم نے جیسے قاسم نعمان صاحب نے کیا, ہم نے بہت سارے پروگرامس کیے, بہت سارے تقریرات عامر ادریسی صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے. پہلے سال ہم نے سینٹر پیج پہ جو اوپینین میکرز ایڈیٹوریلس لکھتے ہیں ان کو بلایا, جو لوگ ایڈیٹوریلس لکھتے ہیں اوپینین میکرز ہیں, ایسے جرنلسٹ آ کے بیٹھے. جب ہم نے ان کے سامنے آپ اور مولا کی سیرت کے گلمسز پیش کیے, زندگی کے حالات ان کے سامنے پیش کیے, آپ یقین جانیے میرا رب جو ہے وہ دلوں کا راجا ہے, دلوں کو وہ بدلتا ہے. وہ غیر مسلم جو ہے وہ رونے لگے کہ محمد صاحب ایسے تھے, کوئی نہیں بتایا اس نے. اور اس میں 2 جرنلسٹوں نے بات کی, ریکارڈڈ ہے کہ آپ نے اب تک محمد صاحب کو چھپا کے کیوں رکھا تھا. یہ وہ بے چینی جو پہلے سال ہمارے اندر پیدا ہوئی کہ واقعی امت نے محمد صاحب کو چھپا کے رکھا. اور ہم آپ پاک مولا کو اپنے برادران کے ساتھ ہم کیسے آج تک نہیں بتا پائے کہ جس کے نام پر, جس کے ناموس پر جان لے لیں گے اور جان دے دیں گے عقیدت رکھتے ہیں, بس کی تاریخ بھی رکھتے ہیں, لیکن ناموس رسول کی عظمت کیوں ہے یہ آج تک ہم نہیں بتا پائے. ہم خود یہ نہیں بتا پائے کہ ہم اپنے آقا سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں. ایک بہت بڑا گیپ ہے, اس پورے گیپ کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اس کم کرنے کی ضرورت میں رابطہ ہی راستہ ہے. اس کی بہت ساری ترتیب ہم لوگوں نے پروگراموں کی لگائی. میرا آپ کے سامنے ہم نے کیا کیا پروگرام کیے اور کیا کرنے والے ہیں. ہم نے سب سے پہلے ہی سال تمام مقاصد فکر کے علماء کرام کو بلایا اور ان کے سامنے پوری بات رکھی, اور تمام کے تمام نے متفقہ طور پہ کہا کہ ہند میں کوئی اور راستہ نہیں ہے غیر مسلم کو, برادران وطن کو بلانے کا. فرض منصبی تو یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگائیں اور بولیں. نہ ایمان اتنا مضبوط ہے, نہ ایمان بلال حبشی جیسا ہے رضی اللہ تعالیٰ, اور ماحول بھی نہیں ہے. لیکن دوسرا حصہ محمد رسول اللہ پہ, اس کی برکتوں سے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا. تمام یہ بات متفقہ طور پہ کہی کہ کوئی اور عنوان کے تحت آپ برادران وطن کو نہیں بلا پائے. تو اس ترتیب ان کے مشورے سے ہمارے دماغ میں جو آئیڈیاز تھی یہ ہوا کہ 12 روزہ عید میلاد النبی کے جو دن ہے اس کو پروفٹ فار آل کے نام پہ کیمپین ہم لوگ شروع کریں, اور یہ ان کی نسبت سے جڑتا ہے. کوئی اور وجہ سے آپ بلائیں تو وہ اس کو کنورژن اور نہ جانے کیا کیا سمجھنے لگے گا. تو ہم نے
ने इसको 12 रोज़ा मुहिम को प्रॉफिट फॉर ऑल उन्वान दिया, और 12 रोज़ा मुहिम पहले ही साल में हमने इस बात का अंदाज़ा सही लगा लिया अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें जब भी सीरत मोहम्मद अरबी के बाले में या उनकी बर्थडे है, उनका सेलिब्रेशन है, आइए, तो लोगों ने आना शुरू किया। समाज के हर तबके को बुलाया। हमारे बरादरान मतलब के झाड़ू लगाने वाले से लेकर PhD डॉक्टर्स और वाइस चांसलर तक को भी सीरत अरबी से मुताबिक कराने के मुख्तलिफ प्रोग्राम किए। उसके बाद ये प्रोग्राम धीरे धीरे जो है वो मुल्क के तुलु अर्ज में फैल रहा है। गुज़श्ता 4 सालों में हिंदुस्तान के बहुत सारे शहर व अजला इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं। हम लोग आइडियाज फ्लो करते हैं, कोई तंजीम नहीं है, कोई NGO नहीं है, कोई रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है। वी आर द आइडियाज फ्लोटर्स, और उम्मत इसकी मेंबर है। अगर आपके अंदर आपका से मोहब्बत है और इन तमाम मामला को समझने के बाद आपके अंदर ये महसूस होता है आपको कि बरादरान वतन के सामने आप अपनी सीरत पेश की जानी चाहिए, तो वो ही मेंबरशिप है, कोई और मेंबरशिप ही नहीं है। प्रोग्राम फ्लोटर्स हैं हम लोग, प्रोग्राम की तरतीब लाए, बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, वो आपके सामने हम लोग पेश भी करेंगे, आप भी उसको रिप्लिकेट कर सकते हैं अपने अपने एरिया में। प्रोग्राम आपका है, प्रोग्राम आपकी जिम्मेदारी का, यह आपका फर्ज मजहबी भी है, ये ईमान का तकाजा भी है। और तमाम मामला के जरिए क्या करते हैं आप? इन तमाम मामला के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कहा कि मैं नबी हमने तेरा ज़िक्र बुलंद कर दिया, हमारा फाना लगा जिक्र, आप उसके हिस्सेदार बन जाते हैं। आप हमारा फाना लगा जिक्र, नबी के जिक्र को बुलंद करने की तहरीक का हिस्सा बन जाते हैं। और ये ईमानी जिम्मेदारी भी है हम सबकी, और एक बड़ी सादत भी है कि हम जो है वो इस तहरीक का हिस्सा बने। बहुत सारी दीगर तफसीलात हैं, हम लोग प्रोग्राम ओरिएंटेड लोग हैं, ये तो तफसील आपको इसलिए बतानी जरूरी थी कि इंस्टिगेट क्यों हुआ और ये हमने क्यों उसको जो है इस कॉन्सेप्ट को पूरी इंडिया में। एक आखिरी बात, जो लोग उम्र के नौजवानों से थोड़ा सा हम जैसे उम्र वाले लोग अगर नाउम्मीद हैं तो उनसे कहना चाहता हूँ नाउम्मीद ना हो। मेरा नौजवान बहुत होशमंद है, बहुत सेंसिटिव है, पढ़ लिख के आगे आ रहा है, उम्मत और मिल्लत की तय भी उसकी संजीदगी मौजूद है, और इसमें मोहम्मद से तो बेपनाह मोहब्बत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान के अमली दायरे कुछ 19-20 हो सकते हैं, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इंतहा सब में बन गया, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। उम्मत का सारा नौजवान मोहम्मद अरबी से उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी हम सब करते हैं, और वो नौजवान एक्टिव भी है, कुछ ना कुछ करना चाहता है, उस क्या करना चाहता है ये उसके पास कॉन्सेप्ट की कमी थी। हम वही कॉन्सेप्ट उसको फ्लोट कर देते हैं, ये कर सकते हैं आप, ये कर सकते हैं आप, ये कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ईमान की बरकत ये है कि हमारे थॉट सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। औरंगाबाद में बैठा हुआ एक नौजवान अगर कौम और मिल्लत के बारे में कुछ सोच रहा है तो पटना में बैठा हुआ और त्रिवेंद्रम में बैठा हुआ जो मुस्लिम नौजवान एग्जैक्टली वही सोचता है। ये ईमान की बरकत है, और वो मोहब्बत जुलूस जब आइडियाज फ्लोटर्स हम मीटिंग लगाते हैं तो पता चलेगा कि वही बोल रहा है, ये भी वही बोल रहा है, इनका कोई कनेक्शन कभी हो ही नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्मत बहुत पॉजिटिव जा रही है, जो कुछ गुजरा वो गुजार लिया, इन बुजुर्गों ने संभाल लिया। अभी जो है नौजवान उसकी अगली पैटर्न को लेने तैयार है, रिले रेस होती है ना, पैटर्न देते आगे बढ़ते हैं, तो अगला नौजवान उनका पैटर्न लेने तैयार है, और ये इनसे तेज दौड़ेगा इंशाल्लाह, मुफ्ती साहब से तेज दौड़ेगा इंशाल्लाह। तो एक कॉन्सेप्ट फ्लोट हो रहा है पूरे इंडिया में कि पूरे इंडिया का हर मुसलमान आइंदा 8-10 साल बाद ऐसा हो जाए कि ये 12 दिन ऑल ओवर इंडिया मुसलमान का हर शख्स ये बोले कि मैं प्रॉफिट फॉर ऑल का कुछ काम करता हूँ। ये 12 दिन जो है मैं नबी की सीरत को फैलाने का काम करता हूँ बरादरान के दरमियान। एक छोटा सा काम, बहुत सारे काम हमने दे रखे हैं, हर आदमी की वजह रोबा हर काम भी नहीं है ना, लेकिन कुछ तो काम है जो इस निस्बत से वो कर सकता है। तो पूरे प्रोग्राम हमने आपके सामने लाए हैं। औरंगाबाद शहर दिलों की धड़कन रहा है हम लोगों की, वो तारीफ के मतलब जिसका मालूम कोई क्या कर ले। तो शहर औरंगाबाद जो है जैसे कासिम जमात साहब ने कहा कि इनकी तहरीकात का मरकज रहा है, और पर उम्मीद भी रहा, बड़ा मिलनी नमाज और दीनी नमाज शहर है, बहुत उसके अंदर जो है इनबिल्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो औरंगाबाद से बड़ी उम्मीदें हैं,
जो कॉन्सेप्ट और जो काम हमने किया है, जो अभी हम DCR के सामने पेश करेंगे, उसमें से कुछ चीज़ें आप जो कर सकते हैं आसानी से वो करें। पहली काम सिर्फ यही है, जब क़यामत में नफ्सा नफ्सी का आलम हो तो आका की शफात हम सबको नसीब हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया शेखना साहब। जब तक माइक ऑन नहीं हुआ था आप बहुत अच्छा बोल रहे थे और अच्छे लग रहे थे। अब जब आपकी आवाज़ के साथ मशीन का रिश्ता हो गया तो वो बात पैदा नहीं हुई जो होनी चाहिए। बहरहाल हम आपके जज्बे खर्च करते हैं। आइए एक छोटी सी बात मैं आपको प्रोग्राम की तफसील बताना चाहता हूँ कि हम कितनी देर में इस प्रोग्राम को समेट लेंगे और हम क्या क्या सोचते हैं इसमें। सबसे अहम बात तो ये कि मौलाना मोहम्मद नसीरुल्लाह मुफ्ताही, अब तक हम मुफ्ती जो है उसको बड़े प्यार और बड़ी अकीदत से सुनते हैं। मुफ्ती के साथ अगर मुफ्ताही भी हमारे दरमियान शेखुल हदीस आ जाए तो ये हमारे लिए बड़ी बरकत की बात है। हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम उनके दुआ पर करेंगे। उससे पहले यहाँ के जो लोग हैं वो 2-2 मिनट बोलेंगे। बोलने का मतलब ये कि आपको आकर इस बात का इजहार करना है, मत ये कहिए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब हमें रिवायती जुमलों की आदत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आप आएँ और आप ये कहें कि इंशाल्लाह हम अपने शहर में इस दौरान ये काम करेंगे। हाँ, वो बता रहे हैं आपको। आमिर साहब पूरी एक्टिविटीज बताएंगे जिससे आप ये तय कर पाएंगे कि आपको कम से कम यहाँ क्या करना चाहिए। मैं वैसे तो मेरे लिए सब बड़े मुहतरम बैठे हैं सामने, सबको मैं ये चाहता हूँ कि स्टेज पे बुला लूँ, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत अहम होती हैं। जैसे हमारे साथ एक नौजवान आए हैं सकलैन बहुत खामोश और कुछ हद तक बहुत आहिस्ता काम करने के आदी हैं, लेकिन इनका जोश और जज्बा जो है बड़ा नेक है। पूरे हिंदुस्तान में इस बार जो हम ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं उस पूरे प्रोग्राम का खाका इसे एक नौजवान ने बनाया और पूरे मुल्क में कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है। मेरी गुजारिश है कि वो भी इस स्टेज पर मैंने उनके लिए कुर्सी लगाई, वहाँ के बैठ जाए। श्रीरामपुर से हमारे सलीम साहब जो आए हैं, मैं इनका बड़ा मद्दाह हूँ और ये बहुत मेहनत से काम करते हैं। इन्होंने कई वर्षों तक असातिज़ा को जोड़ने का काम किया, मुशाहरे किए, मुज़ाकरे किए, सेमिनार किए। अब मैं चाहूँगा सलीम साहब कि आप प्रॉफिट फॉर ऑल का भी कोई एक बड़ा प्रोग्राम है मुस्लिमों में करें, वो आए। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो भी डाइस पर आके बैठे। हमारी जैबा मैडम के बारे में मैंने कुछ बातें कही हैं। हम में से जैबा मैडम और आमिर पर हमारा काम खत्म होगा, फिर थोड़ा सा वो पठान और रिजवान आपा 2-2 मिनट ये लोग अपनी बात करेंगे और मौलाना की दुआ पर हम ये प्रोग्राम खत्म करेंगे। मैं ज़्यादा मैडम से गुजारिश करता हूँ, वो बड़ा दुश्वार सफ़र तय करके आई हैं। हम लोग पहले निकल गए थे, उनका एक प्रोग्राम था इसके लिए, और रात 1:30 बजे से बैठी और सुबह 4:30 बजे यहाँ पहुँची। 4:30 बजे भी यहाँ रात ही होती है। बहरहाल हम उनका खैर मकदम करते हैं। वो फिर से हमको छोड़ के जाने की तैयारी में है, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा रोएंगे, उनके सामने थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे तो रुक जाएंगे आप लोगों की मोहब्बत में। मैं ज़्यादा मैडम से गुजारिश करूँगा कि वो चंद लफ्ज़ों में अपनी अच्छी बातें कहें। मैं एक दुआ से अपनी बात शुरू करती हूँ। ऐ अल्लाह, ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। ऐ अल्लाह, ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगी थी, अब जो बोलूँ तो बातों में असर भी देना। देखिए, हम लोग प्रॉफिट फॉर ऑल टीम की तरफ से आप सबके पास यहाँ पर पहुँचे हैं और इस बार ये मकसद है कि हम चाहते हैं कि ये पूरे महाराष्ट्र, पूरे इंडिया, पैन इंडिया बने ये प्रोग्राम और हर जगह पर ये प्रोग्राम किया जाए। कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जो वही डेट पर होने चाहिए, जिसके लिए हम अलग अलग जगह पे, अलग अलग शहर पर जा रहे हैं। पिछले साल भी हम गए थे। कुछ चीज़ें हम हर बार कवर कर रहे हैं और ये जो मुहिम है ये पिछले 4 सालों से चल रही थी, ये 5वां साल है। देखिए, मुहिम का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम मोहब्बत का पैगाम गैर मुस्लिम लोगों तक पहुंचाएं। अपने बिरादरान वतन जो मुस्लिम हैं उनको तो पता है कि हमारा 12 रबीउल अव्वल हम क्यों करते हैं, हमारी बाकी सारी चीज़ें उनको पसंद है,
इस मुहिम का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि हम दावत देने जा रहे हैं। इस मुहिम का सिर्फ ये मकसद है कि जो आज माहौल बना हुआ है जिसमें हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ हम खुद भी देखते हैं टीचर हजरात बैठे हुए हैं, बाकी लोग बैठे हैं कि आज हमारे बच्चे जहाँ बाहर हैं वो एक कॉस्मो माहौल में पढ़ते हैं, जहाँ पर उनको आपस में एक दूसरे के साथ हार्मनी, उनको आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत होती है, जहाँ पर अगर उनके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत नहीं होगी तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी था कि हम अपने गैर मुस्लिम लोग जो हैं उन तक मोहब्बत का पैगाम इसलिए पहुंचाएं क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं कि नफरत का माहौल बन जाए, नफरत आम हो जाए। तो इसीलिए उसके बरअक्स हम करना चाह रहे हैं कि नफरत की जगह मोहब्बत आम की जाए, और उसका इससे अच्छा टाइम नहीं होगा कि हम 12 रबीउल अव्वल को हमने इसलिए चुना क्योंकि उस वक्त हम खुशी 12 रबीउल अव्वल के दिन हम विलादत की खुशियाँ मनाते हैं। हमारे घर बर्थडे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जैसे हमारे बिरादरान ने बताया कि बर्थडे वगैरह मनाते हैं, उनको पता है, तो हम उनके तक पहुंचने के लिए ये बता सकते हैं कि क्योंकि ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है जिसे हम खुशियों की तौर पे मनाते हैं, और उस दिन हम उनकी तालीम को आम करना चाहते हैं। उन्होंने जो हमको एजुकेट किया है वो हम आम करना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने जो जो चीज़ें इंसानियत के लिए बताई, जो ज़रूरी है ह्यूमैनिटीज़ के लिए, जो आज लोग सबक पढ़ रहे हैं यूनिवर्सल वैल्यूज़ का, यूनिवर्सल वैल्यूज़ आज हर एजुकेशन सिस्टम में चलाई जा रही है। उसकी वजह यही है कि यूनिवर्सल वैल्यूज़ की कमी महसूस की जा रही है, और ये चीज़ें 1400 साल पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको पहले ही देके गए हैं, जिसको सिर्फ नबी हमारे लिए नहीं थे, वो रहमतुल आलमीन थे। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे किस तरह लोगों तक पहुंचाएं। तो हमारी इस मुहिम में बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इस बार हम लोगों ने शुरू किया था इस प्रोग्राम को। तो प्रोग्राम के अंदर मेन जो 3 हमारे इवेंट है जिसको हम चाहते हैं कि वो पूरे लोग हमारे साथ करें, वो है ब्लड डोनेशन, जिसको हम 23 तारीख को करने जा रहे हैं। 23 तारीख को जो ब्लड डोनेशन होने वाला है, हम चाहते हैं कि आप लोग भी, उसका बहुत टाइम है अपने पास, आप सब भी अपने यहाँ पर ब्लड डोनेशन का काम करें। उस दिन ब्लड डोनेशन करके ये बताएं कि ये जो हमारा खून है ये हमारे बिरादरान वतन के लिए काम आएगा, ये जो हमारे जंग में लोग जाते हैं उनके लिए काम आएगा, जो हॉस्पिटल्स वगैरह में है बिना मजहब के, बिना तफरीक के ये खून लोगों को दिया जाएगा। तो ये एक पहला होगा। दूसरा, मस्जिद परिचय हम करने जा रहे हैं 16 तारीख को। तो हम चाह रहे हैं कि उसी दिन हर जगह पर पूरे इंडिया में कम से कम हर शहर में एक ऐसी मस्जिद बनाई जाए जिसमें वहाँ पर नॉन मुस्लिम लोगों को इनवाइट किया जाए, वो भी आपके यहाँ के शहर के बड़े बड़े नॉन मुस्लिम लोग, जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी पॉलिटिक्स में या फिर सोशो इकोनॉमिकल सेक्शन में जाने चाहते हैं, उनको बुलाएं, उनको दिखाएं, ताकि ये एक मैसेज जाए कि भाई हमारी मस्जिदें हैं क्या, मस्जिदें हमारी, हम क्या करते हैं वहाँ जाके। लोगों को बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं, तो वो एक हो गया हमारा। तो ऐसे 3-4 और प्रोग्राम की सारी डिटेल्स और डिटेल में आगे बताएंगे। मैं लेडीज़ के प्रोग्राम को फोकस करती हूँ पहले, कि जैसे हम जेंट्स तो कर रहे हैं, बाकी जगह पर होगा, जैसे मस्जिद परिचय होगा, ब्लड डोनेशन होगा, वहाँ पर लेडीज़ भी रहेंगी। लेकिन मेरी लेडीज़ से दरख्वास्त है कि देखिए, आप लोग जहाँ जिस शहर में रहते हैं, जिस सोसाइटी कम्युनिटी में रहते हैं, अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पर आपके साथ ऐसे लोग भी होंगे जो गैर मुस्लिम होंगे, उनको हमें अपने साथ बुलाना है। जैसे मुस्लिम हम चाय पे लोगों को बुलाते हैं अपने घर पे, आप ज़्यादा मत करिए, कम से कम 5-10 लेडीज़ को बुलाइए घर पे चाय पे। वहाँ पर सीरत के ताल्लुक से हिकमत से बात करिए, उनके साथ वो बातें करिए, उनको बताइए, आपका इखलाक बताइए, आपका कल्चर बताइए। ये चीज़ जो वो कैरी करेंगे ना, उनको बताइए कि हम ये क्यों करते हैं। हमारे घर में सफाई आधा ईमान है, हमारा घर साफ है, तो उसका रीज़न ये है कि हमारे दीन में कहा गया कि सफाई आधा ईमान है, तो हमारा आधा ईमान यहाँ पर है, ये आप बताइए। तो ये चीज़ें जब वो कैरी करके अपने साथ ले जाएंगे तो वो लोग कहेंगे कि अरे इन लोगों को जो तालीम दी गई है, इनके जो मेन टीचर है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने 1400 साल पहले ये सारी तालीम दे चुकी है, हम तो इनको बहुत दूर से जानते हैं, इनको करीब से नहीं जानते। तो इसी तरह हम अपने घर में उनको बुला के दावत दे सकते हैं। देखिए, हम अल्फा एक्स वाले लोग ज़्यादा हैं, जेन एक्स वाले लोग ज़्यादा हैं, और जेन सी अभी चल रहा है, जेन वाई को हमने देखा है, उसके बाद अभी जेन अल्फा आ चुका है। ये दौर ऐसा है कि यहाँ पर वो जो जेनसी जिसको आप देख रहे हैं कि जिन्होंने आज मुल्क को हिला के रख दिया है, आप सोचिए अगर वो जेनसी आपके साथ इस मुहिम में भी काम करने लग जाए तो वो क्या नहीं कर सकता, वो किस तरह इस तहरीक को भी आगे बढ़ा सकता है। तो हमें, क्योंकि वो जनरेशन हमारे से, वो लॉजिकल जनरेशन है, वो जनरेशन हमारे से सवालात करती है,
ان کو ہم کو جواب دینا ہے. جیسے ہمارے نبی نے کہا کہ پانی بیٹھ کے پینا چاہیے, تو لوگ بیٹھ کے پیتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ گھٹنے خراب, سائنس کہتا ہے کہ گھٹنے خراب ہو جاتے ہیں, جبکہ یہ چیز کو ہمارے دین نے پہلے ہی بتا چکا ہے. تو ایسے بہت ساری چیزیں, جیسے انوائرمنٹ پہ لے لیجیے آپ اپنے گھر پہ لیڈیز کو بلائیے, ان کو ہم چھوٹے چھوٹے پودے دے سکتے ہیں گفٹ میں. یہ دینے سے آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ یہ پودے لگائیے, اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. اس کے بعد ہم ان کو چھوٹے گفٹ دے کے آپ ہاسپٹل میں چلے جائیے. بہت سارے ایسے دھرم شالہ ہے جہاں پر بہت سارے اولڈ ایج کے لوگ ہیں جن کے بچے ان کو ملنے نہیں آتے. آپ چاہے ان کو کہیں کہ ہمیں اپنے بچے سمجھیے, ہم کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم کو جا کے ملنا چاہیے, عیادت کرنا چاہیے, جس کے بہت زیادہ ثواب ہے. تو ایسے بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام ہماری لیڈیز کر سکتی ہیں. اور آپ اپنے بچوں کے ٹیچر سے جا کے ملیے, جو آپ کے ٹیچرز پڑھا رہے ہیں جو غیر مسلم ہیں, ان کو آپ دیجیے. جیسے 5 سپٹمبر ہے, ہم 5 سپٹمبر پر بچے اپنے ٹیچروں کو جا کے دیتے ہیں. اس کے پہلے بھی ہم جا کے دیں, اور یہ بھی کہیں کہ کیوں ہم دے رہے ہیں, کیونکہ ہمارے ادھر ٹیچر کا بہت بڑا مقام ہے. کیونکہ ہمارے نبی, ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہمارے نبی بھی ہمارے ٹیچر تھے, اور ان کا بہت بڑا مقام ہے. تو ٹیچر کا مقام بہت بڑا ہے ہمارے دین میں. اور آپ اس طرح اپنے بچوں کو بھی تعلیم دے سکتے ہیں کہ بچوں کو بھی ٹرین کرنا ہے, ہم کو ان کو بھی سکھانا ہے کہ آگے جا کے آپ کو کس طرح اس کو کیری آن کرنا ہے. یہ چیزیں لے کے چلیے. اس کے بعد آپ پولیس اسٹیشن میں جائیے. اس کے بعد آپ آپ کے یہاں پر جو آپ کے جو کارپوریٹرز ہوتے ہوں گے, ایم ایل ایز ہوتے ہوں گے, ان کے ساتھ مل کے آپ جہاں بھی جانا چاہیں, ایسی جگہوں پر جہاں پر جا رہے ہیں, 2-3 لوگوں کو بھی کور کریں, بہت بڑی بات ہوگی. لاسٹ ایک بات آپ کو میں بتانا چاہوں گی کہ ہمارے پروفٹ فار آل کا سوشل میڈیا کیمپین ہے, ڈیجیٹل کیمپین چل رہا ہے, جس کو سکلین ہمارے لیڈ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. اس کے اندر ہمارا پروفٹ فار آل کا پیج بنا ہے. آپ یہاں جو بھی ایکٹیویٹی کریں پروفٹ فار آل کے بینر کے اندر میں, آپ اس کو اس پیج پر ڈالیں, اس کو وہاں سے ٹیگ کریں, تاکہ یہ بات لوگوں تک پہنچے کہ یہ پورا ملک ایک ساتھ پروفٹ فار آل کر رہا ہے. اور یہ پیغام جائے لوگوں تک کہ بھی کیا ہے. دیکھیں, جب تک آپ تجسس, کیوریوسٹی پیدا نہیں کریں گے لوگوں کے اندر کہ کیا چیز ہے, جب تک یہ مہم آگے نہیں بڑھے گی. تو پروفٹ فار آل یہ کیمپین جو ہے یہ ہمارا نہیں ہے, یہ کیمپین سب کا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ پورا ملک جڑے, اور ایک ایسا ٹائم ہے جہاں پر ایک ساتھ یہ جو ہمارے پورے 12-15 دن ہم اس کو کرتے ہیں تیاری کے ساتھ, وہ سارے لوگ ایک ساتھ کریں. شکریہ. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علیکم یا سید المرسلین. معزز حاضرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ بڑے ہی شارٹ نوٹس پر 1 یا 2 دن پہلے شاید آپ لوگوں کو میسج دیا گیا ہے اور آپ سب لوگ اس پہ تشریف لائے. اس کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ. ہمارے تینوں ساتھیوں نے آپ کو اس کیمپین کے بارے میں, پروفٹ فار آل یعنی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے, اس کیمپین کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتایا کہ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں. میں تھوڑا سا فوکس کروں گا کہ اس کیمپین کے تحت ہم لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں, کیسے کر سکتے ہیں, اور ہم کیا کر رہے ہیں, اور آپ سے کیا امید ہم نے لگائی ہے. یہ ان باتوں کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو ہم لوگوں نے سب سے پہلے اس کیمپین کو لے کر پریپریٹری میٹنگز کا ایک سلسلہ شروع کیا. بمبئی شہر میں جو سیکشن ہو سکتے ہیں ان سب سے بات چیت کرنے کی کوشش کی, ڈاکٹرز سے, این جی اوز سے, ٹیچرز سے, اسکولس کالجز کے ذمہ داران سے. آپ جو سیگمنٹ سوچ سکتے ہیں تقریباً ہر سیگمنٹ میں لوگوں سے بات چیت کی اور ان کو یہ گائیڈ کیا, اویئرنیس کریٹ کیا, اور اس بات پر انکریج کرنے کی کوشش کی کہ ہم سب لوگوں کو اس کیمپین کے تحت کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے. دوسرا ہم نے یہ کیا کہ بمبئی شہر میں صرف ساؤتھ بامبے یا مین بامبے چھوڑ کر بمبئی کے اطراف میں جتنے چھوٹے چھوٹے شہر ہیں ان سب جگہوں پر ہم نے دورہ کیا. الحمدللہ پچھلے 3-4 سالوں میں ملک کے بھی بہت سارے شہروں میں ہم جہاں پہنچے وہاں اس کیمپین کے بارے میں تذکرہ کیا اور لوگوں کو اس بات کے لیے انکریج کیا کہ اس کے تحت کام کریں. اس سال ہم نے طے کیا کہ مہاراشٹر کے الگ الگ اضلاع میں پہنچ کر انشاءاللہ ان باتوں کے بارے میں بتایا جائے گا تاکہ ہر جگہ اس کام کو شروع کیا جا سکے. جس کی کڑی میں کل ہم ناسک میں تھے, مالیگاؤں میں تھے, اب یہاں ہے, جلگاؤں جا رہے ہیں, اکولا ہے, پرونی ہے, ناندیڑ ہے, عثمان آباد ہے, سانگلی ہے, پھر پونے ہے. ایسے پورا سرکٹ کمپلیٹ کر کے 10-12 شہر ہوتے ہوئے ہم لوگ گزر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم لوگوں کی اس کوششوں کو ان کو کامیاب کرے اور نہ صرف ہم بلکہ پوری امت مسلمہ, پورے امت محمدیہ اس پورے کیمپین میں اپنے تن من دھن سے پوری طاقت کے ساتھ کوششیں کرتے رہے. جیسے کہ ہم نے بتایا کہ اس پورے کیمپین کا مقصد غیر مسلموں کے درمیان میں پہنچنا ہے. وہ لوگ جو دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگ اس ملک میں بڑی تعداد میں رہتے ہیں ان تک پہنچ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, سیرت, شخصیت, ان کی تعلیمات اور پیغامات کو ان کے پیچھے پہنچانا, یہ ہم لوگ کا بنیادی مقصد ہے. تو ہم لوگ جو اس سال کرنے جا رہے ہیں وہ باتیں آپ کے سامنے تھوڑی سی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں.
14 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक ये रबीउल अव्वल के पहले 12 दिन है, जिसको हमने सिलेक्ट किया है कि इस दौरान ये काम करेंगे। वैसे तो जिंदगी भर करने वाला ये काम है। 14 अगस्त पहली रबीउल अव्वल है, 26 अगस्त 12 रबीउल अव्वल है। 14 अगस्त के रोज सबसे पहले हम लोग जो है मीडिया के सीनियर लोगों के साथ बम्बई में मिल रहे हैं। सीनियर मीडिया प्रोफेशनल्स मतलब एडिटोरियल्स लिखने वाले लोग, एडिटर्स, सीनियर रिपोर्टर्स, ओपिनियन मेकर्स, थॉट लीडर्स, वो लोग जो कम्युनिटी का माइंड शेप करते हैं, सोसाइटी में नैरेटिव स्टैब्लिश करते हैं, ऐसे लोगों को हम लोगों ने इनवाइट किया। इंशाल्लाह बहुत शानदार प्रोग्राम इंशाल्लाह 14 तारीख को इनके साथ करेंगे। शनिचर का दिन है, 15 फ्राइडे का दिन है। 15 अगस्त के दिन हम लोगों ने डॉक्टर्स के साथ एक मीटिंग रखी है, नॉन मुस्लिम डॉक्टर्स के साथ, उनके बीच में बातें करेंगे। 15 अगस्त के दिन हम लोगों ने यूनिटी जॉब फेयर के नाम पे, आप लोग औरंगाबाद शहर एमपी के जॉब फेयर एक्टिविटीज को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, माशाल्लाह सर यहाँ मौजूद हैं। यहाँ हम लोगों ने बहुत सारे जॉब फेयर किए मुंबई शहर में, यूनिटी जॉब फेयर, जिसमें तमाम मजहबी जमातों को हमने अलग अलग मज़ाहिब की जमातों को, मंदिर ट्रस्ट, मस्जिद ट्रस्ट, गुरुद्वारा और चर्च मिलकर ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो एक बड़ी एक्टिविटी हम लोग 15 अगस्त को करने जा रहे हैं। 16 अगस्त संडे का दिन, पहला संडे, 12 दिनों में 2 संडे हम लोग को मिलने वाले हैं। तो 16 अगस्त को हम लोग मस्जिद परिचय के उन्वान से ये प्रोग्राम करेंगे। मस्जिद परिचय के उन्वान पर कहीं कहीं मुल्क भर में कुछ न कुछ एक्टिविटीज होती हैं। हम चाहते हैं कि इसको एक आम कर दिया जाए। हम चाहते हैं कि हर शहर में जहां जहां पॉसिबल हो, कम से कम एक मस्जिद में तो इस तरह का प्रोग्राम किया जाए जहां मकामी तौर पर जो लोकल नॉन मुस्लिम हजरात हैं उनको मस्जिदों में बुलवाकर एक छोटा इंट्रोडक्शन का प्रोग्राम किया जाए। ये जो सारे प्रोग्राम्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसमें हम कोशिश करते हैं कि बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं हो और इवेंट मतलब ऐसे नहीं लगे कि स्टेज शो चल रहा है। हम लोगों को बुलाते हैं, इंटरेक्शन, नॉर्मल इंटरेक्शन, कैजुअल इंटरेक्शन हो, एंगेजमेंट हो, खाना खाया जाए, हो सके थोड़े बहुत तोहफे तहफ़ किए जाए और एक छोटा सा आधे घंटे का प्रेजेंटेशन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर। एक 2025 प्रोग्राम जो है वो हमने बनाया है कि जो वो इन लोगों के दरमियान में पेश करते हैं और वो चीज़ें एक कॉमन प्रोग्राम और हम चाहते हैं कि हर जगह पर बिल्कुल इन्हीं 20-25 पॉइंट पे बातचीत की जाए। 20-25 पॉइंट क्या है? सबसे पहले भाई आपको अपने माँ बाप के साथ कैसे रहना है, अपनी बीवी के साथ, अपने घर में कैसे रहना है, अपने बच्चों के साथ कैसे रहना है, यानी अपनी फैमिली वैल्यूज क्या होनी चाहिए। अभी घर से बाहर निकले तो नेबर्स के साथ कैसे रहना है, नेबर्स से बाहर निकले तो मुआशरे में कैसे रहना है, यतीमों के साथ कैसे रहना है, खवातीन के साथ रहना है कैसे रहना है, जानवरों के साथ कैसे ताल्लुकात होने चाहिए। ये सारे मामलात हैं, इन मामलात को फोकस करते हुए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है जो हम लोग हर जगह देने की कोशिश करते हैं अलग अलग तरीके से। तो ये सिलसिला हम चाहते हैं कि हर शहर में हो। तो 16 तारीख को मस्जिद परिचय हमने बताया आपको। उसके बाद 17 तारीख से लेके 18, 19, 20 ये जो 3-4 दिन है, इसमें हम लोग मल्टीपल डिफरेंट मीटिंग्स रख रहे हैं अलग अलग छोटे छोटे गैर मुस्लिम ग्रुप के साथ। कहीं पर स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं, कहीं पर लॉयर्स को बुला रहे हैं, कहीं डॉक्टर्स को बुला रहे हैं, कहीं टीचर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कम्युनिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वो एक बड़ा सिलसिला हम लोगों ने इस दौरान किया है। उसी दौरान हम लोग 17 से 20 में स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, गैर मुस्लिम तलबा के लिए एक सीरत पर मबनी स्पीच कंपटीशन रखते हैं। गैर मुस्लिम तलबा के लिए अच्छी काफी प्राइजेज होंगी। जिला मैडम उसको हैंडल कर रही है, हमारे शहर के एक कॉलेज है महाराष्ट्र कॉलेज, इसके साथ मिलकर गैर मुस्लिम तलबा के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। जो हमारी अपनी स्कूल्स कॉलेजेस है उनको हमने अलग प्रोग्राम का सिलसिला दे दिया है कि आप लोग हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं कुछ ना कुछ। रबीउल अव्वल में हर जगह कुछ ना कुछ एक्टिविटी हर स्कूल में होती है। हम उसमें ये कर रहे हैं कि इसमें किसी तरह गैर मुस्लिम को इन्वॉल्व करिए। मिसाल के तौर पर हमने क्विज कंपटीशन रखा हुआ है, तो उसमें एज जजेस आप जो है ना लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बुला लें। स्पीच कंपटीशन रखी हुई है, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों को बुला लें। सो ट्राइंग टू क्रिएट सम काइंड ऑफ एंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन विद द पीपल ऑफ अदर फेथ सो दैट दे कम एंड दे लिसन टू द बेसिक सीरा ऑफ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इन कोशिशों के साथ हम लोग ये काम कर रहे हैं। 20 तारीख को हम लोगों ने बम्बई शहर के जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर्स हैं हर पार्टी के, उन सब के साथ जो है मीटिंग करने का प्लान किया है। ऑलरेडी उसके इन्विटेशन जा रहे हैं। पूरे 227 कॉर्पोरेटर्स होते हैं हमारे यहाँ, हम सबको इन्वाइट कर रहे हैं, इवन फॉर बीजेपी, शिवसेना, व्हाटएवर पार्टीज, हर सबको इन्वाइट करके उनके साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा ये जो 14 से 25, 26 का दिन है, 12 दिन, उसमें हम लोगों ने खास तौर पर हर दिन एक लंच प्रोग्राम रखा हुआ है। एक 15-20 लोगों का बहुत बड़ा इवेंट नहीं है, ऐसे मतलब 100-200 लोगों का प्रोग्राम नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं कि 25-30 बच्चों को बुलाया जाए, अलग अलग कॉलेजेस की यंग जनरेशन की जो बच्चे हैं स्कूल कॉलेज में जाने वाले, जो स्टूडेंट लीडरशिप है, जो हमारे यहाँ साउथ बॉम्बे, अगर मैं कहूँ तो जो साउथ बॉम्बे की बड़ी कॉलेजेस हैं, केसी है, जेवियर्स है, वल्सिन है, ऐसे अलग अलग कॉलेजेस, इनके बच्चों को बुलाया तो उनके साथ लंच देना और वही 20-25 प्रोग्राम बच्चों के ध्यान के हिसाब से उनके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़े तो शनिचर का दिन आता है 22 अगस्त।
22 अगस्त के रोज हम लोगों ने नातिया मुशायरा रखा हुआ है शहर में। ये नातिया मुशायरे पूरे हिंदुस्तान में होते हैं, हमने थोड़ा सा उसको यूनिक क्यों किया है, पिछले 4 सालों से कर रहे हैं कि उसमें सिर्फ नॉन मुस्लिम शोरा होते हैं, नात पढ़ने वाले लोग सारे दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले लोग होते हैं। आप कहीं देखे शायद ऐसा एक्सपेरिमेंट ना दिखाई दे पूरे मुल्क में। और इतना शानदार प्रोग्राम होता है, इतना रूहानी मंजर होता है, इतना ज्यादा स्पिरिचुअली हाई होता है वो इवेंट कि हम सब लोग भी जो है इतना ज्यादा मजा कहीं किसी और प्रोग्राम में नहीं आता जितना उस प्रोग्राम में फील होता है। गैर मुस्लिम आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात पढ़ते हैं, तकरीरें करते हैं, और ऑडियंस में भी गैर मुस्लिम होते हैं, तो बहुत शानदार एक माहौल बनता है। ये कर रहे हैं। अब उसके बाद आ जाता है अगला संडे 23 अगस्त। संडे के दिन अगेन हम लोगों ने एक नेशनल कैंपेन प्लान किया है। उस नेशनल कैंपेन में हम लोगों की तैयारी ये है कि नेशनल ब्लड डोनेशन ड्राइव कर रहे हैं। हम चाहते हैं पूरे मुल्क भर में ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से, ईद मिलाद तो नबी की निस्बत से, और उस खून को हम इस तरीके से लोगों को पेश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ब्लड जनरेट होगा इसको इंडियन आर्मी, एयर फोर्सेस, कैंसर जैसे मौसी मर्ज में मुब्तला जो लोग हैं उनकी हेल्प के लिए कैंसर हॉस्पिटल में दिया जाएगा। मकसद शायद इनको देने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मकसद है लोगों के जहन में ये दिखाना, ये बिठाना कि देखिए मुसलमान इस तरह से वेलफेयर का काम कर रहे हैं, इस तरह से एक मुल्क से मोहब्बत के एक अमली नमूना पेश कर रहा है। तो ये हम लोगों की कोशिश है 23 तारीख के लिए। 24, 25, 26 अगर आप देखें बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स हम लोग कर रहे हैं। खास तौर पर 25 और 26 वाला जो 2 दिन है, आखिरी 2 दिन 11 रबी अव्वल और 12 रबी अव्वल, उसमें हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग अपनी फैमिलीज में, अपने घरों में, अपने सोसाइटीज में, अपने ऑफिसेज में, इंस्टीट्यूशंस में अतराफ के गैर मुस्लिम लोगों को इन्वाइट किया। जो मैडम बता रही थी कि अपने घर में 2-4-5 लोगों को बुलाया, उनके साथ एक सेलिब्रेशन का माहौल किया और उनको एक बेसिक कोई 15-20 बातों में से जितनी बताई जा सके, जरूरी नहीं कि एक साथ पूरा उड़ेल दिया जाए, एक बहुत नेचुरल वे में जो 10-15 बातें बताई जा सकती है। ये बताया जा सकता है कि भाई यतीमों के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा बर्ताव था, क्या मैसेज दिया उन्होंने कि हम लोग को यतीमों के साथ कैसे रहना चाहिए, नेबर्स के साथ कैसे रहना। बहुत मामूली बातें हैं, लेकिन वो जो जज्बा पैदा करती है, वो जो दिलों को कनेक्ट करने का काम करती है, वो बात ऐसी कोई दुनिया में दूसरी बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हम लोगों की कोशिश है। तो ये इस तरह से 12 दिनों को हमने प्लान किया। अब इसमें इसके अलावा हम लोग इन्हीं दौरानों में जेल में जाकर इवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन को विजिट करके ऑफिसर्स को मिलने की कोशिश कर रहे हैं, ओल्ड एज होम में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अलग अलग प्रोग्राम, और हम लोगों ने पिछले 4 सालों में आप जो कुछ सोच सकते हैं कि गैर मुस्लिम को इंटरैक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ऑलमोस्ट एवरीथिंग की हर साल अलग अलग मुख्तलिफ उन्वान के मुख्तलिफ तरीकों से एक मॉडल क्रिएट करने की कोशिश की, दैट विच कैन बी रेप्लिकेटेड इन एनी अदर सिटी। अगर किसी को कोई गाइडेंस की जरूरत है कहीं पे भी अगर हम लोग कोशिश करें तो ये जो किसी शहर में काम करने की कोशिश करें तो उन मॉडल्स को रेप्लिकेट किया जा सकता है। मैं कुछ चीजें उसकी बताता हूँ आप लोगों को। जैसे हम लोगों ने स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ मिलकर बहुत सारे इवेंट्स किए। विद इन स्कूल कॉलेजेस हम लोगों ने फॉर एग्जांपल एक कंपटीशन रखा बच्चों का, और उसमें एक जगह पर 40 अगर मुस्लिम ऑफिसर्स को इन्वाइट किया कि आप जज बनिए, आपके हाथों से इनाम दीजिएगा। वो बैठ के जो है ना सीरत की तकरीरें सुनते हैं माशाल्लाह। एक डिफरेंट तरीका है। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स के साथ हम लोगों ने खास तौर पर मीटिंग्स की हर साल में, गैर मुस्लिम टीचर्स के साथ में। कॉलेज मैडम साबुद्दीन की प्रिंसिपल है, इनके कॉलेज में काम करने वाले जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनको इकट्ठा बुलाया, उनके सामने कैसी प्रेजेंटेशन इन पार्टी काइंड ऑफ थिंग, तो उनको कम से कम एक बताने का मौका मिला। हम जो दूसरे मराठी टीचर्स होते हैं खास तौर पर उनके साथ अलग अलग मीटिंग्स की। हम लोगों ने अपने अपने इलाके में गैर मुस्लिम मैनेज स्कूल्स हैं, जैसे स्पेशली मिशनरी स्कूल्स हैं या दूसरे बड़े स्कूल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हम टॉकिंग अबाउट बॉम्बे, तो वहाँ के जितने बड़े स्कूल्स हैं उनके मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स को बुला के हर साल मीटिंग की। इस बार की वो मीटिंग्स हम लोग कर रहे हैं। इस बार बॉम्बे में कम से कम ऐसे 3 मीटिंग कर रहे हैं अलग अलग हिस्सों में, वहाँ के अतराफ के। आप अपने शहर में कर सकते हैं सेम काम इंशाल्लाह। उसके अलावा लॉयर्स के साथ मीटिंग, IAS IPS के साथ मीटिंग, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ मीटिंग, कैलीग्राफी इवेंट जो है वो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। आर्ट और कल्चर से थोड़ा सा लोगों को कनेक्ट करना आसान होता है। कल हम एक जगह पर मोलेगांव में थे, वो हमारे यहाँ कैलीग्राफी इवेंट में शामिल हो चुके। उन्होंने कम से कम 2500 डिफरेंट तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा है। तो ऐसे कैलीग्राफी इवेंट में नॉन मुस्लिम्स को इन्वाइट करने की हम लोगों ने कोशिश की। उसके अलावा जेल गए, ऑर्फनेज गए, क्विज कंपटीशन, एक नेशनल पेपर प्रेजेंटेशन हमने किया था पिछले साल, मैडम ने उसको मैनेज किया था। 80 डिफरेंट पेपर्स बाय स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड बहुत सीनियर पीपल, उसका पब्लिश कर रहे हैं, उसका ISBN वगैरह भी आ चुका है। वो इस बार लॉन्च करने जा रहे हैं, किसी प्रोग्राम में एक जगह वो बुक को लॉन्च करेंगे। उसमें फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी ही हैड प्रेजेंटेड वन पेपर, आपको मिलेगा इंशाल्लाह, हम भेजेंगे।
इतना शानदार पेपर लिखा है उन्होंने, कोई मुस्लिम नहीं है वो, और इतने बड़े एकेडमिशियन है, किसी भी यूनिवर्सिटी का बॉम्बे जैसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, मतलब वो कुछ तो होगा और उसकी बात कहीं तो पहुंचेगी। तो इस तरह से लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स को बड़ी तादाद में हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। ये जो मेडिकल ब्लड डोनेशन कैंप्स है, ये ब्लड डोनेशन कैंप में डॉक्टर्स करते हैं माशाल्लाह, बड़ी जितनी डॉक्टर्स की एसोसिएशन है मुल्क भर में, ये वर्क इन दैट। लेकिन उसके अलावा फ्री मेडिकल कैंप्स बहुत सारे लगाते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टिव पॉइंट है कि फ्री कंसल्टिंग थे, यानी 26 अगस्त वाला दिन सारे डॉक्टर्स फ्री इलाज करेंगे। जितने लोग हमारे साथ एसोसिएट होते हैं वो ऐलान करते हैं कि आज रेगुलर 12 रेगुलर कर देते, आज सबको फ्री दवाइयां दी जाएगी। तो एक तरीके से ये खासतौर पर स्लम्स में हम लोग इसकी बड़ी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा रील्स एंड पोस्टर कंपटीशन किया, बच्चों के लिए बहुत सारा काम किया। एक खास तौर पे जो काम करते हैं, जैसे मस्जिद बच्चे का प्रोग्राम है, या अपने घरों पे बुलाने, अपनी सोसाइटी पे बुलाने का काम है, उसमें हम ये जो सारे काम मैं अब तक बता रहा था, उसमें ज्यादा फोकस इस बात पर होता है जो कम्युनिटी लीडर्स है, मजहबी जमातें हैं, दूसरे मजहब की सोशल तंजीमें हैं, NGOs हैं, है ना, टीचर्स हैं, इस तरह के लोग, ऑफिसर्स को इन्वॉल्व करें। लेकिन जो क्लास 4 एम्प्लॉयज हैं, जो निचली सतह पे बहुत ग्राउंड में छोटे लेवल पे काम करते हैं, जिनको कभी कोई नहीं पूछता, उन लोगों को फोकस हम लोग उनको भी पैरेलल फोकस करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं मस्जिद में, एक साल का मिसाल बताओ, मस्जिद परिचय में मस्जिद में हमने आसपास के जितने क्लास 4 एम्प्लॉयज हैं उन सबको इन्वाइट किया, उनके साथ बैठ के लोगों ने खाना खाया एक ही दस्तरखान पर, उनको तोहफे दायर थे, 2-4 बातें जो बोलनी थी वो बोली गई, नहीं बोली जाए मैं समझता हूँ तो भी बहुत बड़ा काम है। अगर उनको एक्चुअल में कोई प्रवचन ना दिया जाए तो भी ये बहुत बड़ा काम है उनके लिए। यही जो है ना मेराज है कि हम लोग किसी के साथ दस्तरखान पे बैठ के खाना खा रहे हैं जो उनके साथ कभी किसी ने नहीं किया, जो वो अपने जज्बात का इजहार करते हैं, जो वो रेस्पॉन्स और फीडबैक देते हैं, which is this is unmatched, this is unparalleled to anything else। तो ये हम लोग कोशिश करते हैं कि इस तरह से लोगों को कनेक्ट किया जाए। ऐसे बहुत सारी मिसालें मैं आप लोगों को पेश कर सकता हूँ, मेरे पास पूरी लंबी लिस्ट लिखी हुई है, लेकिन उसमें जाने की बजाय मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप इसमें से कुछ भी करें। हर तंजीम औरंगाबाद शहर की, न सिर्फ औरंगाबाद शहर की बल्कि अतराफ में जहां जाते हैं, बहुत अहम जिम्मेदारान बैठे हैं अलग अलग इलाके में, सबको बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, इस मैसेज को दूर दराज तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि गांव-गांव तक ये बात पहुंचे और गांव-गांव तक जो है लोग इस तरीके की एक इंटरेक्शन और राब्ते की मुहिम, जो सईद खान साहब ने कहा कि राब्ता ही एक वाहिद रास्ता है, वो करने की कोशिश करें। आप कोई प्रोग्राम उठा लें, इस तरह 200 बड़े होटल में बड़ा इंतजाम करके 200 लोगों को बुलाने की कोई जरूरत बहुत खास नहीं है। 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग, सर आप जैसे इंस्टीट्यूशंस जो है, you can do even much better and much bigger something on a much bigger scale। तो ये कोशिश हम सब लोग साथ मिलकर करें। ये हो गया इवेंट वाला काम कि इवेंट के जरिए हम लोग ये कोशिश करें, हम अपनी एक पैगाम लेकर आप लोगों तक आए। हम लोग जो इवेंट कर रहे हैं हमारे नेशनल कैंपेन का हिस्सा बने। ये जो पैम्फलेट आप देख रहे हैं इसमें हम लोगों ने एक डेज बना के लिखे हुए, हर दिन एक थीम देने की कोशिश है, इसको लगातार इंप्रूव करते रहेंगे हर साल 10 साल इंशाल्लाह। तो इस थीम के तहत अपने अपने तौर पर जो कुछ कर सकते हैं वो करें। ये हो गया इवेंट, आप करेंगे, हम करेंगे, हम सेंट्रली कुछ करेंगे, कुछ नेशनल कैंपेन्स रन करेंगे, लेकिन सिर्फ इससे नहीं बल्कि आज का दौर जो है ना वो मीडिया और सोशल मीडिया का दौर है। तो हम ये चाहते हैं कि सोशल मीडिया कैंपेन्स के जरिए भी लोगों तक पहुंचने की हम लोग कोशिश करें। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मैसेज की अहादीस हैं, मैसेजेस हैं, उसके हमने एक पूरी रिपोजिटरी बनाई हुई है, पोस्टर्स की, बैनर्स की, होर्डिंग्स की, वीडियोस की। आप हमारे चैनल्स में जाके सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, हम लोग की जी ड्राइव पे सब कुछ अपलोडेड है, इट इज फ्रीली अवेलेबल फॉर एवरीबॉडी। तो आप वहां से लेके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एडिट करिए, वैसे का वैसा यूज, जो चाहे वो करें। कॉन्सेप्ट जहन में रहते हुए इस बात को जैसे चाहे वैसे फैलाए, ये हम लोगों की कोशिश है। कॉन्सेप्ट हम सिर्फ एक डिस्कशन करने के लिए, कॉन्सेप्ट हम लोग का नहीं है, ये हम सबका कॉन्सेप्ट। तो मीडिया सोशल मीडिया के जरिए पहुंचने की कोशिश करें। होर्डिंग बैनर्स हम लोगों ने बना के रखे हुए हैं, और होर्डिंग्स और बैनर्स को आमतौर पर पॉलिटिशियंस लोग भाई बैनर्स पूरे आप देखते होंगे शहर भर में बैनर्स लगे, मगर उन बैनर से कोई मैसेजिंग नहीं होती ना, पूरा शहर घूमता रहता, देखता रहता, मगर कोई स्पेशल मैसेजिंग नहीं होती। लेट अस डू सम मैसेजिंग विद दोस बैनर्स, वहां कुछ हदीसें लिखी जाए कुछ, तो उसका भी फॉर्मेट हमने बना के रखा हुआ है ताकि एक तरह से जो है ना मैसेजिंग जो है सब जगह पहुंचे, सब जगह लगे। हम ये चाहते हैं कि ये सारा काम आप लोग अपने अपने तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश करें, हम सब मिलकर इसको करने की कोशिश करें। हम सब ये कोशिश करें कि इस पूरे कैंपेन में कोई एक हिस्सा हम लोगों का हो जाए। मैं अलग अलग जगहों पर ये बातें बोल रहा हूँ, ये कैंपेन किसी एक ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक ग्रुप का नहीं। आज हम इसको प्रमोट करें, कल आप निकल के पूरे औरंगाबाद शहर में प्रमोट करिएगा। ये प्रॉफिट फॉर ऑल कैंपेन को बिल्कुल इस तरह से मनाना है, हम लोगों को पूरा हिंदुस्तान एक साथ मनाए, जिसका एक खाका इन दोनों लोगों ने पेश किया।
कि मुल्क के कोने कोने में हर ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम करे। बिल्कुल ये ऐसा है जैसे 15 अगस्त मनाया जाता है। 15 अगस्त किसी एक इंडिविजुअल का या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं, 26 जनवरी किसी एक का काम नहीं, हर आदमी करता है। और उस कॉन्सेप्ट पे साथ पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में प्रोग्राम होते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम, इनके सारे प्रोग्राम भी उसी नहर के पूरे इंडिया में। अल्लाह के रसूल सिर्फ मेरे और आपके नहीं, हम सब के हैं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं, सब के हैं, सारे आलम के हैं। तो हम लोग सारे आलम में इनका मैसेज पहुंचाने की कोशिश करें। इस पैगाम के साथ हम आप लोगों के दरमियान में हाजिर हुए हैं। उम्मीद है और दुआ है कि इंशाल्लाह औरंगाबाद शहर में भी इसी तरह से जबरदस्त काम होगा। आप लोग आपस में बैठे मिले, मीटिंग्स करें, कुछ जिम्मेदार लोग हैं, आप लोग इसमें कुछ प्लान बनाएं, अलग अलग तंजीमों की जिम्मेदारी पर अलग अलग काम लगाएं और इसकी कुछ शुरुआत करें। अल्लाह हमारी कोशिशों को कबूल करे, कामयाब करे और हम सबको इसका खूब अजर दे। और हम सबको अल्लाह पाक जो रफा का जिक्र वाला मामला अल्लाह ने फैलाया, उसमें हम लोग का भी कुछ हिस्सा अल्लाह दर्ज कर ले। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। लोग थे जो आपके लिए शहर में आए थे, मुंबई से। अब एक बात जो मैं खास तौर पर कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया का ज़माना है, हम अपने आप को उससे दूर भी नहीं रख सकते। उंगली के एक जुम्बी से सारा आलम, सारी दुनिया आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाती है। लोग अब घर से ज़्यादा फेसबुक पर रहना पसंद करते हैं। ये और बात है कि फेसबुक पर आके जितना खूबसूरत नज़र आता है उतना असल में होता नहीं। यह इतना बदसूरत भी नहीं होता जितना आधार कार्ड और पैन कार्ड पे नज़र आता है। लेकिन फेसबुक वगैरह ये चीज़ें जो है, इसका एक मजबूत पहलू है कि इससे हम अपनी अच्छी बातें भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हमारी बहनें जो व्यूअर्स हैं और हमारी बहनें जो इसको प्रमोट कर रही हैं, उनमें लाखों लाखों देखने वाले और पसंद करने उनके लोग हैं। हमने सबसे अपील की है अपने शहर में कि आप अपने तौर पर भी इस पैगाम को, आज सदर साहब की तालीमात को जितना आम कर सकते हैं, अदब और तहजीब के दायरे में, शरीयत के दायरे में, उसको आम करें। आपसे भी मेरी गुजारिश है, यहाँ बैठे हुए चंद इदारों के जिम्मेदारान हैं जिनका मैं खासतौर पर इस्तेमाल करता हूँ। खासतौर पर मैं वारसाने हुरूफ और फेम वगैरह का आपके सरोज का हमेशा से बता रहा हूँ। आज भी इस महफिल के इनेकाद में उनकी कोशिशें हैं। गो के खालिद सैफुद्दीन साहब हमारे दरमियान इस वक्त अलील है, इसलिए नहीं आ सके, लेकिन उनकी दुआएं, उनका साथ और उनकी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए यहाँ वासिल भाई भी बैठे हैं, प्रोफेसर सलीमुद्दीन है, काजी साहब हैं, प्रोफेसर रफीउद्दीन हासिफ साहब हैं, शफीक भाई हैं। और यहाँ कई, मैं आमिर और सईद से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कई काबिल और कई ऐसे इदारे हैं जो मुसलसल अदब की, समाज की और तालीम की खदमत करने जा रहे हैं। फेम जो हमारा इदारा है, बल्कि ख़वातीन से यहाँ शमी आपा बैठी हुई हैं, औरंगाबाद के कई ऐसे इदारे हैं, उनमें हमारी एक फिरदौस फातिमा जो है, उनके काम करने का अंदाज बड़ा वालहाना है। और बचपन से उनके प्रोग्राम में मैं आता हूँ। अंजुमन अहले कलम बिनते नस्मा गुरु, और उन्होंने इंतजार हुसैन पर पीएचडी भी की है। और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में 2 दिन से उन्होंने बहुत मेहनत की, बार बार मुझसे रब्ता कायम किया। मैं चाहूँगा कि वो 2 जुमले इस मौके पर करें, उसके बाद रिजवान आपा बोलेंगे, फिर हम रऊफ भाई का शुक्रिया सुनेंगे और फिर उसके बाद मौलाना की दुआ। जैसे कि कहा जाता है कि औरंगाबाद ये शहर गंगा जमनी तहजीब का मरकज़ है। यहाँ पर आपसी यगानगत के धागे जोड़े जाते हैं और कुछ इसी तरह का पैगाम लेकर मुंबई से आप लोग आज हमारे दरमियान में मौजूद हैं। और यहाँ जो तमाम लोग बैठे हैं, मुख्तलिफ NGOs से, मुख्तलिफ कॉलेजेस से और स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं। और आप लोगों के साथ आज हम जो बैठे हैं, सिर्फ इस निस्बत पर बैठे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। और हर जगह जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आएगा, नाम आएगा, तो इंशाअल्लाह ताला हम हाजिर रहेंगे। जिस तरह आज जेन-ज़ी की बात की जा रही है, अल्फा बीटा की भी बात की जा रही है, तो मैं सबसे पहले यकीन तो आप लोगों को ये दिला दूं कि इन लोगों को साइड में रखकर भी कुछ काम नहीं किया जा सकता। और हर काम की शुरुआत सबसे पहले अपने घर से भी करना ज़रूरी है, अपने अतराफ़ के माहौल से करना ज़रूरी है, अपने माशरे से, और तब
कहीं जाकर हम अपने शहर के लिए और मुल्क के लिए काम कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे खाका पेश किया गया, मैं ये यकीन तो नहीं दिलाऊंगी कि मैंने इतने काम किए हैं, वो भी नहीं गिनवाऊंगी, और मैं इतना कर सकती हूँ ये भी नहीं कहूँगी, लेकिन आपने जो खाका यहाँ पर पेश किया तो उसमें से चंद ठोस 4 या 5 इवेंट करने की जिम्मेदारी मैं अपने जिम्मे लेती हूँ, और जिसमें मुझे साथ देंगे यहाँ पे मौजूद है। एक हम मल्टी लिंगुअल निशिस्त रखेंगे ख़वातीन के लिए, जिसमें गैर मुस्लिम पढ़ी लिखी औरतें रहेंगी और हमारी भी ख़वातीन रहेंगी। इसकी जिम्मेदारी सना बिखार और ज़ोरन सदफ के साथ संबरित लेंगे। एक इवेंट हम, जैसे कि अभी यहाँ कहा गया, कैलीग्राफिकल हम लेंगे, जिसकी जिम्मेदारी है तो शहबाज ज़रीन और हमारे साजिदा बाजी लेंगे। और एक सोशल इवेंट हम करेंगे जिसकी जिम्मेदारी यहाँ पर साइमा इश्तियाक लेंगे और उनका साथ बाकी की ख़वातीन हैं। अब जो स्टूडेंट्स के लिए इवेंट रहेगा तो मैं फिरोज पठान सर का यहाँ पर नाम अपनी तौर पर उनकी बगैर इजाज़त के पेश कर रही हूँ। क्या तमाम स्टूडेंट्स को लेकर वो कोई एक अच्छा सा इवेंट करेंगे। बेशक हम गैर मुस्लिम को जोड़ने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमारे स्टूडेंट्स पे भी मेहनत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारा वजूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे जाए, हम हमारी जान और माल और ये वक्त हम तमाम उन पर लुटा दे भी तो कम है। और एक इवेंट नौजवानों के लिए मैं यहाँ अशरफ और खालिद बैठे हमारे साथ, और हमारे साथ भाई शफीक और रफीक यहाँ शहर में जो काम कर रहे हैं, तो एक ब्लड डोनेशन या फिर कोई एक कैंप, मेडिकल कैंप, ये हम सब मिलकर करेंगे। और ये तमाम चीज़ हम हमारे जो बड़े बैठे हैं इनकी निगरानी में करेंगे। और मैं यहाँ पर बस सिर्फ कहने वाली बातें नहीं कहूँगी, मैं चंद बस करने का अज़्म रखते हुए माइक अपने हाथ से लीजिए। बहुत अच्छी बातें दौर से आपके सामने रखी हैं, अल्लाह ताला उनके जज्बे को कबूल करे। हम तो मुंबई शहर में हैं, वहाँ से डायरेक्ट आपकी मदद नहीं कर पाएंगे बहुत ज़्यादा। यहीं पे आपके शहर में इतने अच्छे लोग हैं कि आप उनके साथ मिलकर ये काम कर सकती हैं। कोई और ऐसा मौका रहा जहाँ हम रह सके तो हम जरूर आएंगे। मुझे इस मौके पर मोहसिन कौम डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब की शिरकत से इसलिए याद आ रही कि उनका अपना बड़ा कंट्रीब्यूशन इस शहर को असर 9 से इसमें आबाद करने का और तालीमी और तहजीबी बनाने का बड़ा अहम काम जिन्होंने किया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उसी तहरीक से जुड़ी हुई रिजवाना शमीम साहिबा जो वहाँ के कॉलेज में किसी एक अच्छे से पढ़ाए। मैं ज़्यादा लोगों को जानता हूँ कि इस टॉपिक पर रिजवाना ने अलग से हटकर भी उर्दू पढ़ाते हुए भी ये जो मौजू और जो हम काम लेकर चल रहे हैं, इस पर उन्होंने अपने तौर पर बहुत काम किया है। एक बार उन्होंने अपनी गुफ्तगू में हमें कुछ बताया भी था। मैं चाहूँगा कि ये मौका तो उस पूरी तफसील में जाने का नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी इस तहरीक से, हमारे इस मिशन से उनके ख़यालात जो हैं वो भी इत्तेफाक करें और कुछ काम नया इस मिशन के तहत करें, तो हमें बहुत बेइंतहा खुशी होगी। मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरमा डॉक्टर रिजवाना शमीम साहिबा से, प्लीज़। स्टेज पे मौजूद तमाम हजरात व ख़वातीन, हॉल में मौजूद तमाम हजरात व ख़वातीन, देखिए सईद सर ने जो बात की, जज्बे की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जब भी आएगा तो खुद ब खुद कैसे असबाब बनते और कैसे रास्ते खुलते, वो बात मैंने इसलिए महसूस की कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि स्टूडेंट लाइफ से भी ये जज्बा कहीं ना कहीं था। फिर जब उस्ताद की हैसियत से जब मैं काम करने लगी तो मुझे और एक रास्ता मिल गया कि और उर्दू पढ़ाने लगी तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मुझे तो बहुत महफूज रास्ता मिल गया अब अपनी बात करने के लिए। ये सब रहा, और लेकिन अपनी बात रखने के लिए या करने के लिए मैं सबसे पहले फ़ैन वारिसाने हरफ़ो क़लम, खालिद भाई, फौजिया तहसीन मैडम, खुद तहसीन साहब, इन तमाम की मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे बाज़ाब्ता एक बज़्म ख़वातीन के नाम से प्लेटफॉर्म अता किया।
اب تو اور زیادہ تحفظ مل گیا مجھے کہ اب میں اپنی بات اور بھی زیادہ آسانی سے کر سکتی ہوں. جیسے سعید سر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بھی باتیں ہیں کہ بھئی بادشاہ ہوگا، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، دیکھیں میں انفرادی طور پر یہ باتیں ہمیشہ سے کرتی آئی اور آپ بہت شارٹ میں بتانے کی کوشش کروں گی. ایک بات آپ کو بتاؤں کہ میرا غیر مسلموں میں زیادہ آج کل تو زیادہ ہی اٹھنا بیٹھنا ہے میرا، کیونکہ دیوگری کالج سے جو ہے تو میرے ہسبینڈ جڑے ہوئے ہیں تو وہاں کے پروگرام میں مجھے بلایا جاتا ہے اور تو وہاں پر میں اپنی باتیں بالکل علم کے طور پر وہاں پر رکھتی. اور جب کوئی پوچھتا کہ میڈم آپ یہ باتیں کہاں سے لاتے، آپ اتنی اچھی اچھی باتیں کیسے کرتے، تب مجھے موقع مل جاتا. میں کہتی ہمارے پروفیٹ محمد نے بتائی یہ باتیں مجھے سبھی. میں پہلے نہیں بات کرتی، نہ میں وہاں دین کی بات کرتی نہ مذہب، کیونکہ وہ سینسیٹیو ایشو ہے. ان کو ایک طرح سے کیا بولیں گے الرجی ہے اس ٹاپک سے. ہاں وہ وہیں بگڑ جاتے ہو پہلے. اس لیے مجھے آہستہ آہستہ میں ان کی جڑوں میں پانی ڈال. اور ظاہر ہے اپنا جو بھی آداب زندگی ہے، آداب تعلیم ہے، ہماری جو بھی زندگی ہے، ہمارے جو بھی سلسلے ہیں، ہمارے جو بھی اخلاق ہے، انسانی ایشوز ہے، سماجی ہے، معاشی ہے، کوئی ایک چیز تو مذہب اسلام سے چھٹی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی ہوگی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم جب ان کو یہ باتیں بتا رہے ہیں حقوق کی، جانوروں کے، پتوں کی، جھاڑوں کی، ہندوؤں کی، مسلم کی سب جو حقوق بتا رہے، وہ ان لوگوں کا ایسا لگتا ہے کہ آپ یہ باتیں کہاں سے لاتے. میں بولتی ہوں ہمارے پروفیٹ محمد نے دی، قرآن میں یہ تمام باتیں دی. اور جو آپ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، آپ یقین مانیے مجھے خود جب میں ایسی باتیں میں کرتی نا مزاج کے اعتبار سے، تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم تو ضرور پیدا ہوتی. سروس کے دوران ایک محترمہ، ناصر سر اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے میں کس کی بات کر رہی ہوں، ایک محترمہ آپ کے ڈپارٹمنٹ سے بتا تعلق ہے. جب ہم آپس میں بیٹھتے تھے، جب ہم سب اسٹاف ممبرس آپس میں بیٹھتے تھے اور ظاہر ہے ہر موضوع پر بات ہوتی تھی، اور اگر جب مذہب پہ اور دین پہ بات ہونے لگی تو ہوتی تھی وہ، اور اس میں زیادہ حصہ میرا ہوا کرتا تھا. تو انہوں نے مشہور کر دیا تھا کالج میں اور ہر ایک کے سامنے بولتی تھی آئی ہیٹ ہر. میرے لیے وہ کہتی تھی آئی ہیٹ ہر. جب بیٹھی جب بولے یہ بات کرتی ہے، حالانکہ دیگر موضوعات پہ بھی بات ہوتی تھی، لیکن وہ چونکہ ان کو وہ باتیں کھل جاتی تھی تو اس لیے انہوں نے وہی بات پکڑی. ٹھیک اسی طرح اورنگ کالج فار وومن میں ایک سے سابقہ پڑھا اور مولانا آزاد کالج میں ایک سے سابقہ پڑھا، آپ ہی یہ ڈپارٹمنٹ سے. تو یہ سب، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں. چلیے آپ کے ذہن میں کیا ہے مجھے بتائیے، ہمارے محمد کے متعلق، ہمارے پروفیٹ محمد کے متعلق آپ کے ذہن میں کیا ہے. آپ یقین مانیے انہوں نے کیا بات کی ہوگی. انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ اتنی بڑی امت کو لے کے چلنے والا شخص مسلمانوں میں ایک شرابی، کبابی، بے نمازی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک لفظ اگر کوئی کہہ دے تو وہ تھپڑ ضرور مارے، اس کو اتنا ہوش ضرور رہے گا اپنے نشے میں بھی کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، یہ کس نے دیا، یہ محبت کس نے دی، یہ کیا چیز ہے. میں ان سے کچھ جو بھی سمجھ رہی تھی کہ انہوں نے کیا بات کہی آپ کو معلوم، آپ کے محمد نے اتنی شادیاں کی. دیکھو کیسا مطلب کا پہلو اٹھایا. جب تم کو اسٹڈی کرنی تھی محمد کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اور بھی کچھ بات کرتے، لیکن نہیں، اتنی شادیاں کی آپ کے محمد نے. تلوار کی زور پہ جو ہے تو اسلام کو وہ کیا. چھوٹی لڑکی سے شادی کی، ایک بڑی عورت سے شادی کی. اب یہ مصلحت ہے وہ کیا جانے کہ حضرت حذیفہ کے دور کون سا دور تھا، نبوت کا زمانہ تھا، آپ کو تسلی چاہیے تھی، وہی آتی تھی، کوئی میچور عورت چاہیے تھی آپ کے فیلنگس، آپ کی کیفیت کو سنبھالنے کو. اور حضرت عائشہ والا معاملہ آپ کے انتقال کے بعد، آپ کی وفات کے بعد جو ہے تو احادیث زمان، اب یہ باتیں میں ان کو کہاں یہ سب باتیں سمجھاتی ہوں. تو ان لوگوں کے ذہن میں یہ ہے. تو میں جب بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتی، میں اپنی بات کرنے سے پہلے ان لوگوں سے پوچھتی آپ کیا سمجھتے ہمارے بارے میں، پروفیٹ محمد کے بارے. تو آپ یقین مانیے کہ نئے نئے سوالات نکل آتے اور اس کا تسلی بخش جواب ہم نے اگر دے دیے تو وہ کم از کم مخالفت نہیں کرتے. تو ہمارے لیے 1+1 تو وہی مل جاتا ہمارے کو. میں زیادہ ٹائم نہیں لیتے ہوئے انفرادی طور پر سعید سر، قاسم سر، وہ زمانے سے میں اس کے اوپر کام کر رہی. نسیم سر کو بھی معلوم ہے میرے کام، نسیم سر بھی اچھی طرح جانتے ہیں، ہم محلہ بھی ہے اور مطلب ہم خیال بھی ہے، بہت سارے معاملات میں ہم آپ کے ساتھ بھی تھے. تو یہ میں انفرادی طور پر کرتی آئی، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ یا کوئی ایسے نتائج مجھے نہیں وہ ہو رہے. اگر ایسا کچھ ہے تو ہم
آپ کی مدد اس معاملے میں کر سکتے ہیں. اور خاص طور سے میں خواتین کے لیے خواتین پہ میں کام کر رہی ہوں, تو ایسا کوئی نہ ہے, ہمارا گھر ہم کو ملتا ہے تو میں انشاءاللہ اس معاملے میں پوری مدد کروں گی. ایک مبارک کام کے لیے آگے آنا میرے لیے بےحد ضروری ہے اور یہ میری ذمہ داری بھی ہے. اللہ آپ کو اس کام میں جزائے خیر. ریا صاحب, میں آج یہاں پر ہمارے شہر میں اس تعلق سے ابھی تک کیا کیا کام ہو رہے ہیں, میں 2 منٹ میں اس کا خاکہ آپ کے سامنے پیش کروں. اس شہر کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر ہر عمر کے لیول پر الگ الگ گروپ جو ہے کام کرتے ہیں. ماشاءاللہ سب سے بڑا کام ہماری مسجد میں جامع مسجد سے ہوتا ہے. اس جامع مسجد میں مولانا نسیم مفتاحی صاحب کی ذمہ داری سے اور بہت ہی بخوبی طور پر مولانا جو ہے جب ہزاروں غیر مسلم ہماری جامع مسجد میں تشریف لاتے ہیں, اس وقت ان کو بہت پازیٹیولی اور بہت پیار محبت سے ہر تقریب میں مولانا میسیج کنوے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اتنا ہی نہیں, جب بھی ہمارے پاس عید کا خطبہ ہوتا ہے, عید کے دوران میں اس کا پورا بھرپور فائدہ اٹھایا جاتا ہے. پوری پولیس ڈپارٹمنٹ اور سارے منسٹرز وہاں جب موجود ہوتے ہیں, ان کے سامنے اسلام کی بہترین تصویر پیش کرنے کی کوشش ہمارے مولانا اور دیگر شہر کے ذمہ دار ملی تنظیمیں ہمیشہ کرتے ہیں. تو اس کے لیے اس موقع کو جاننا لیتے ہوئے سال بھر جو ہے یہ کام الگ الگ موقع در موقع ہوتا ہے. دوسرا رہا صاحب بلڈ ڈونیشن کیمپ کا. بلڈ ڈونیشن کیمپ شاید ہی کوئی ایسا مہینہ ہوگا جس مہینے میں اس شہر میں نہیں ہوتا ہے. سب سے بڑا بلڈ ڈونیشن کیمپ ہمارے پاس سیرت النبی کے موقع پر ہی رکھا جاتا ہے. کئی تنظیمیں ایسی ہیں جنہوں نے اس کو اپنا پیٹنٹ بنایا ہے. خاص طور سے یہاں پہ رحمانی صاحب بھی جماعت اسلامی سے موجود ہیں, اور جماعت اسلامی کا سب سے بڑا بلڈ ڈونیشن کیمپ جو ہے یہاں پر سیرت کے موقع پر ہوتا ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ ہم نئے پروگرام چیک آؤٹ نہ کرتے ہوئے جو لوگ پہلے سے یہ پروگرام چلا رہے ہیں ہم ان کو پروموٹ کریں. ابھی ریسنٹلی جو ہے بڈی لائن سوشل گروپ نے جو ہے ہماری شہر کی جو سب سے بڑی مسجد ہے جس کو ہمارا مرکز ہم مانتے ہیں, اس مرکز میں بڈی لائن سوشل گروپ نے بلڈ ڈونیشن پچھلے ہر سال رکھ رہے ہیں, اور یہ والے بلڈ ڈونیشن کیمپ میں انہوں نے ریکارڈ بریک کیا اور باضابطہ اناؤنسمنٹ کر کے دیا گیا کہ بھائی یہ سارا مسلم بھائیوں کا خون جو ہے غیر مسلموں کو ہم عطیہ کے طور پر دیتے ہیں. یہ کام ہو رہا ہے. ریا سوال جو ہے یہاں پہ وارثان خلم کے ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے جو ہے شہر میں بہت بڑی تحریک چلا رکھی ہے. جتنے سینئر سٹیزن ہمارے شہر کے تھے جو گھروں میں بیٹھ کے ناتی پوتی سنبھالتے تھے, ان تمام کو انہوں نے مصروف کیا ہے. ہر موقع در موقع یہ لوگوں کو بلاتے ہیں, اور نہ صرف بلاتے ہیں بلکہ ان کو انکریج بھی کرتے ہیں کہ اب آپ کی سماجی ذمہ داری ابھی ختم نہیں ہوئی, آپ کو بہت سارے کام کرنے ہی کرتے. تو وسیم صاحب یہاں بیٹھے ہیں, صاحب بھائی, باقی باجی وغیرہ تو پیش رہتے ہیں. اب رہا سوال جہاں تک بچوں کا معاملہ ہے, یہاں پر مہاراشٹر میں سب سے بڑا سیرت النبی جی کے کوئز ہم لوگ آرگنائز کرتے ہیں. ہمارے شہر کے الگ الگ تنظیمیں, اس وقت تقریباً 5 تنظیموں کے براؤچر سبھی اسکولوں میں پہنچ چکے ہیں, اور تقریباً لاکھوں بچے جو ہیں مراٹھواڑہ کے اور ہزاروں بچے اورنگ آباد شہر کے اس کوئز میں بہت جوش خروش سے صرف مسلم ہی نہیں, تمام غیر مسلم, ہولی کراس اسکول ہو, سینٹ زیویئرس اسکول ہو, یا چاہے مراٹھی اسکولس ہو, سارے بچے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اور نہ صرف پارٹیسپیشن ان کو کیا جاتا ہے, باضابطہ ان کو بڑے بڑے انعاموں سے بھی جو ہے نوازا جاتا ہے. جب ان کو براؤچرز دیے جاتے ہیں تو بچوں کو یونٹی آفرز دیے جاتے ہیں کہ آپ کو لیپ ٹاپ پرائزز میں دیں گے, یا ریفریجریٹرز دیں گے, یا سائیکلز دیں گے, یا ٹیبز دیں گے. اس سے ہزاروں بچے جو ہے پارٹیسپیٹ ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ سے آپ کے تقریباً کاموں میں سے جو مشن آپ لے کر چل رہے ہیں, رو بھائی کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا ہمارے شہر کا چھوٹا سا خاکہ پیش کرنے کا. اور یہاں بھائی بھی بیٹھے ہیں, بھائی کا بھی جو ہے ماشاءاللہ بہت بڑی خدمت ہے. صدیقی صاحب جو ہے تمام مسلم بچوں کے اوپر جو ہے MPSC UPSC کے اوپر جو ہے کام کر رہے ہیں. ان کے خود کے بچے کو انہوں نے کلیکٹر بنائے ہیں. جمیل بھائی ہیں ہمارے جنہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ بیڑا اٹھائے. رمضانی بھائی کی فیملی لگی رہتی ہے. تو ماشاءاللہ سے جو ہے رفیع الدین ناصر صاحب کا تو ساری لائف انہوں نے ہمارے لیے لگا دی. تو یہ سارے کنٹریبیوٹرز ہیں ہمارے شہر کے. اور ماشاءاللہ آپ نے جو مشن لے کر چلے ہیں, اس مشن میں جہاں کہیں بھی ضرورت پڑے گی, ہمارے شہر کے لوگ جو ہے ہر چیز کو لبیک ہی بولتے ہیں, خلافت کسی کی کرتے نہیں ہیں, کیونکہ ہم کو سرپرستی ایسے ماہر لوگوں کے حاضر ہیں ہمارے سر پہ. جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ. محترم حاضرین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ساری باتیں یہاں واضح ہو چکی ہیں, مقاصد ظاہر ہو چکے ہیں, اور ہمارے شہر سے توقعات بھی بہت رکھی گئی ہیں. اور ابھی ضیاء صاحب نے بہت ساری باتوں کا ازالہ بھی کیا, بہت ساری باتوں کی وضاحت بھی کی ہے.
اور میں منتظمین کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ جو مشن لے کر چلے ہیں اس میں سے بیشتر پر یہاں پر عمل ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی عمل ہوتا رہے گا. اس میں ایک ہی بات کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کیونکہ پروفٹ کا جو پورے زندگی گزری ہے صرف انسانیت یا مذہب کی طرف ہی نہیں بلکہ انہوں نے بہت سارے ایسے سائنسی کانسیپٹ ہیں جس کو انہوں نے واضح کیا اور 1400 سال کے بعد وہ سائنسی کانسیپٹ جو ہے تو دنیا کی سمجھ میں آئے ہیں اور ہم نے اس کے اوپر بہت ساری خامہ پرسائی بھی کی ہے. اور وہ جب مضامین ہمارے برادر وطن کے ہاتھ میں جاتے تھے اور جب وہ پڑھتے تھے کہ پلانٹس کا اس طرح سے 1400 سال پہلے یوز بتایا گیا ہے تو وہ بہت تعجب میں پڑھتے تھے کہ یہ تعلیمات جو آج ہم سائنس سے سمجھ رہے ہیں یہ پروفٹ نے 1400 سال پہلے بتائی گئی ہے. ڈاکٹر فردوس نے جو تو بہت ساری باتیں بتائی ہیں کہ ہم اس طرح سے جو ہے تو یہ کریں گے. ہم اس میں جو ہے تو ایک ایسا سائنس ایگزیبیشن بھی رکھ سکتے ہیں جس میں جو ہے تو یوٹیلیٹی آف دا پلانٹس پودوں کے استعمال کے تعلق سے یا پھر وہ بہت سارے بیسک سائنس کانسیپٹ ہیں وہ جو ہے تو پروفٹ نے جو بتایا ہے وہ کریں گے اور انشاءاللہ وہ ہم اپنی ذمہ داری میں اپنے حوالے سے کریں گے. اور بھی جہاں پر بھی آپ کو ہماری تعاون کی ضرورت ہے آپ بلا تکلف بغیر کسی اس کے ہمیشہ حکم دیتے رہتے ہیں. ابھی جی اچھی بات ہے. اب آپ کو آپ کے بھی کوئی گزار کریں گے اس موضوع پر مضامین بھی ہیں کتابیں بھی ہیں اور یہ بھی بتاتے چلوں کہ ابھی انڈیا کا سب سے بڑا پولیٹیکل کانفرنس ہو رہی ہے اس میں ہم جو پیپر پریزنٹ کر رہے ہیں وہ پروفیٹک پلانٹس ود ریفرنس ٹو بھارت وہ قبول بھی ہوگا اور انشاءاللہ ہم اس کو میسور پیش بھی کریں. اس طرح سے ہمارا سلسلہ ہے and we are trying to provide this type of information to our non-Muslims and they were surprised to see about the information given in the Quran Sharif as well as in Prophet knowledge and many things they like it اور ہم کھل کر جو ہے چیزیں بتا رہے ہیں اور بھی آپ کی ذہن جو رہے گا انشاءاللہ کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. کہ خوشی اس بات کی ہے کہ آپ بہت پلان وے میں منصوبہ بند طریقے سے کر رہے ہیں مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہم تک اپروچ کرنے کے لیے آپ تھوڑا دیر سے جاتے ہیں. 10 دن کی تقریب کے لیے آپ 1 مہینہ پہلے لا جائیں اور جتنی دورے آپ کر رہے ہیں تو 1 مہینہ پہلے آپ پھر لوگ ہر جگہ ہیں اور کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. کام زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. اب ہم یہاں پہ کام کرتے ہیں سارے لوگ ایک آدمی یہاں پہ ذمہ دار رکھا ہوا لیکن پلان وے میں نہیں کرتے. اب یہی کام جو 1 مہینہ پہلے بھائی نے لیا بلڈ ڈونیشن کیا ہم ایک مرتبہ تھوڑا آگے پیچھے کرتے ہمارے پروگرام کے تحت بھی کر لیتے. تو ہم لوگ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کا جو پروگرام ہے وہ مجھے بہت پسند آیا. تھوڑا سا اس کے اندر ایک چیز ایڈ کرنا ہے کہ اس کے اندر ہم غیر مسلم دوستوں کو کس طرح انوالو کر سکتے ہیں اس پہ ہم کو زیادہ توجہ رکھنی ہے. کام ہم کرتے رہتے ہیں لیکن اور یہ طریقہ جو ہے مائنڈ طریقے سے ہم کو نہ دعوت دینی ہے نہ ہم کو کچھ کرنا ہے ہم بس تعارف کرنا ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے تعلقات میں لوگ جو ہیں دوست ہیں ہم ان سے بات بھی کرتے ہیں. وہ لوگوں کی جو جستجو ہے اس کا جواب بھی دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر ان کو لگے کہ ہم ایک پروگرام کے تحت کسی ایک منصوبے کے تحت ایک اچھے طریقے سے ایک اچھے انداز میں ان کے سامنے اپنی بات پیش کرنے کے قابل بھی ہیں تو اس کے کچھ پھل بھی آ سکتا ہے. تو مجھے بہت مسرت ہوئی آپ لوگوں کے یہاں آنے سے آپ کے پروگرام سے اور دعا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم متحد بھی ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اس پہ عمل ہوگا. اگر پورے 10 دن کا نہیں 12 دن میں نہ ہو تو جیسے فردوس نے بتایا اب یہ لوگ چلنے والے آ رہے ہیں یہ لوگ چلانے والے ہیں تو پھر 5 پروگرام تو انہوں نے دے دی اور 2-4 اور بڑھ جائیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. معزز حاضرین میرے رہبر میرے مارگدرشک ڈاکٹر قاسم خان صاحب کے ذریعے سے آج آپ کے محفل میں شرکت کرنے کا موقع ملا. اصل دعوت تو عامر میں مجھے عثمان آباد کی ملی تھی توسط باجی کی طرف سے
कि वहाँ पर आप आए करके, लेकिन सर का जब कल मैसेज आया तो मैंने कहा कि श्री रामपुर से औरंगाबाद नज़दीक है, मैं यहाँ अटेंड करता हूँ। बहरहाल जो काम आप 4 साल से कर रहे हैं, बस यही काम जो है पिछले 3 साल से हम लोग भी कर रहे हैं। सही में हमारा तरीका ये है कि हम गैर मुस्लिम भाइयों में ज़्यादा काम करते हैं। मेरे साथी आए डॉक्टर सलीम शेख, मेरा खड़े हुआ, ये बल्कि हॉस्पिटल चलाते हैं, तो हर साल ईद मिलादुल नबी के दिन इनके हॉस्पिटल में हम ब्लड डोनेशन के कैंप लेते हैं, और उसमें मुस्लिमों के साथ साथ मुस्लिम भाई भी ब्लड डोनेट करते हैं। ब्लड डोनेशन के लिए लोग गैर मुस्लिम आते हैं। दूसरी बात, पिछले 2 साल से हम लोग जो काम कर रहे हैं सर, कि आप सब जो सीरत की किताब है, जीवन चरित्र, मराठी में बहुत कम है, लेकिन हमने उसको तलाश किए और पिछले 2 साल में 3500 लोगों तक हमने वो किताबें तकसीम कर चुके हैं पूरे महाराष्ट्र में भी। और इस साल जो है हमने 5000 किताबों का टारगेट रखा है। किताब दिल्ली में छप रही है अभी, और इंशाल्लाह वो ईद मिलाद से पहले आप तक भी पहुँचेंगे, और हम सबके लिए है। और हमने कोशिश ये की है कि उसके अंदर जो है बाकायदा हर तालुके में, हर जिले में जहाँ हमारे दोस्त हैं जो ताल्लुकात रखते हैं, हर एक के पास 10, 20, 5 किताबें भेज के उनके जो गैर मुस्लिम दोस्त हैं रिलेटेड वाले, उन तक हमने पहुँचाए हैं। पिछले साल जो है 4 सितंबर को एक तरफ तो गणेश उत्सव चल रहा था और एक तरफ हमारा ये प्रोग्राम चला था। श्रीरामपुर की VIP गेस्ट हाउस में जो है हमारे आमदार सुधीर तांबे साहब हैं, आमदार हेमंत ओगले साहब हैं, और बाकी सब लोग गैर मुस्लिमों के सामने जो है हमने ये सारी किताबें उनमें तकसीम की, और हमें इतना पसंद किया गया कि इस साल जो हमने 5000 किताबें उसके लिए मुख्तस की है, और वो किताबें हम तक पहुंचाने वाले हैं। उसके साथ साथ अभी हमने देखिए अपने प्रोग्राम में शामिल है शजरकारी, तो डॉक्टर सलीम और मैं जो है पिछले 3 साल से हम लोग ये प्रोग्राम करते आए हैं, और हर साल जो है 50 से 60 दरख्त लगाते, सिर्फ लगाते नहीं, उसके नशोनुमा भी करते हैं। आप कभी श्रीरामपुर में आएंगे, जब आप मिल्लत नगर में आएंगे, सलीम मोहिद्दीन सर यहाँ पर तशरीफ फरमा है, तो मिल्लत नगर के कैनाल साइड में देखेंगे आप तो सारे दरख्त हमारे लगाए गए। तो इस तरीके से जो है ये काम हम लोग करने जा रहे हैं। आज बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों से जुड़ने का मौका हमें मिला, आपने हमें बोलने का मौका दिया, इसलिए शुक्रिया। आम्ही तुम्हाला संपूर्ण मानव जातीसाठी कृपावान बनून पाठवलेला आहे। बहरहाल मैं तमाम आए हुए मेहमानों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपके इन कामों को कबूल करे। बहरहाल फिरदौस वाली ने एक असाइनमेंट दिया था कि बच्चों के लिए कुछ करें। मैं यहाँ पड़ोस में एक बहुत बड़ा कॉलेज है, मौलाना आज़ाद कॉलेज, उसमें जूनियर कॉलेज में लेक्चरर हूँ, और वहाँ पर हमने 24 और 25 अगस्त को इंटर डिस्ट्रिक्ट सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पीच कंपटीशन मुनक़िद किया गया। इसमें इंशाअल्लाह दूर दराज से भी बच्चे आएंगे, शहर के भी बच्चे रहेंगे। दूसरा फिलवक्त दिगर तंजीमों में वाबस्ता इस्लामिक रिसर्च सेंटर, जिसके सदर हमारे एडवोकेट फैज सईद साहब है, उसका ट्रस्टी हूँ, जमात इस्लामी का कारकुन हूँ, ये सारे काम करते हैं। लेकिन यकीनन यहाँ पर एक टॉपिक डिस्कस हुआ, मस्जिद परिचय। तो नासिर इसको उर्दू में तो बहुत सारे लोग बात करते हैं, मराठी का थोड़ा तजुर्बा है, मराठी अच्छी है, तो इंशाल्लाह मस्जिद परिचय में जहाँ जहाँ रियासत में अगर कोई खिदमत का मौका मिले तो इंशाल्लाह हम वहाँ हाजिर रहेंगे। यहाँ इतने हजरात बैठे हैं, आप स्टेज पे, आप मोहतबर, आप तमाम का शुक्रिया, खासतौर से मेहमान का कि आप औरंगाबाद आए, इस मूवमेंट में हम औरंगाबादियों को साथ में लिया।